English. So how many? Yeah. Gangwaji, it's on. Okay. Once again, all the participants, welcome back to our program. And for your information, again, we have another speakers for the session, and the session is, very important and very essential for the teachers, for the coaches point of view, and especially for the students point of view, because here we are going to discuss about the Khelo India fitness app assessment, registration, whole procedure from A to Z. And we have with us the experienced speaker, Mr. Sujit Panigrahi sir, and Madam Neeraj Singh. So I will be failing in my duty if I don't, welcome them. So before going to session, I would like to welcome them on behalf of Force Ministry, Government of India, Khelo India, and Lakshmibai National College of Physical Education, Sai LNCP Trivandrum, and on behalf of our principal sir, Dr. G. Kishore, and entire team of organizing this program, I, Dr. Narendra Gangwar, would like to extend my heartiest welcome to the co-coordinator of the program, and I would like to mention the backbone of this program, Mr. Sujit Panigrahi sir. Sir, welcomes you. Thank you. Let me introduce about sir. He is the CEO of Fitness 365, which runs structured physical education and sports coaching program in more than 1,500 schools across the country. Fitness 365 is managing the Khelo India Fitness Assessment Program for Sports Authority of India, Swachh Bacche Swasth Bharat program for KBS, and is also part of Fitness Fit India program. There is also part of CBSE and NCERT curriculum designing committee. So it's indeed pleasure and honor for us to having you with us. Now next I'll welcome Madam Neeraj Singh, Head of the Department, JP Public School, Greater Noida. Madam, we are really happy to have you in our program, and thank you, sir. yeah, well, we welcome you, madam. And for the participants, madam is CBSE Sports Observer since 2006. Madam is a national level player of table tennis and taekwondo, and a master trainer, Khelo India Fitness Assessment. So without taking much time, I would like to hand over the board and screen to sir and madam. And participants, let me add something here. These are the people who are really working in directly with this assessment program across the country. So they have lot of experience and understanding of this entire program. So please allow me to so sir, please, you can continue. Sorry, please. Yeah. So please continue. You can continue, sir. And before start, I would like to welcome all the participants for joining us and for being with us from past many days. And for your information, we are at the final stage of the program. So being with us, and we are sure that it is definitely helping many of the physical education teachers and community coaches. Sir, over to you, please. Yeah, thank you so much, Gangwaji. Both of us are partners in crime. So, मैं सारे लोगों को 25 almost today we are so today is on day 22 actually. So day 22, I think all these participants have been with us for so long, and we have had two tracks. Track one was basically the theme was on for physical education teacher, where we actually taught about the importance of physical fitness. We talked about the roles and responsibility of PE teachers.
We talked about the curriculum structure for nursery to class 5, 6 to 8, and 9 to 12. We talked about planning a play session. We talked about creativity in physical education and sports. We also had a long session on, so where we had a lot of speakers. We had NCRT Dean, we had all the speakers from various institutes. Then we had one, so those were for about 11, 12 days. Then the next 10 days were for community coaching. We talked about the role of community coaches. So we are finished on physical education. So we did on community coaching. So those were basically about structured program for physical education and coaching. Now the third part, as in any curriculum that we look at, mathematics, science, English, social science, languages, in any subject that we talk about, every physical education is a subject like any other subject. So any subject also has a component of assessment. So term 1 and term 2 में हमें report cards देते हैं, मैथमेटिक्स का रिपोर्ट मिलता है, साइंस का मिलता है, EVS का मिलता है, हर सब्जेक्ट का मिलता है जो क्लास टीचर देते हैं बच्चों के लिए. सिमिलरली जो फिटनेस असेसमेंट का रिपोर्ट कार्ड भी हर बच्चे को मिलना चाहिए. तो हम क्यों मिलना चाहिए, क्या उसका फायदा क्या है, हम ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और कैसे होगा. सो हियर सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. जो क्लास हमने ये डिस्कस किया था, जो क्लास बीच वाले जो क्लासेस होते हैं, क्लास 4 to 8 या 6 to 8 के देखते हैं, मिडिल स्कूल है, उसी टाइम पे बच्चे बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं. तो बच्चों का जो इंटरेस्ट डेवलप होता है वो उस टाइम पे हमें पता चलता है. तो हमारा सिमिलरली हमारा फिटनेस के बारे में जब हम बात करते हैं, सिमिलरली इन दैट मिडिल जोन इज व्हेन लॉट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग इन चिल्ड्रन. तो हम अभी देखते हैं कि इसका क्या हमारे लिए क्या रिलेवेंट है. ये मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. हिमा दास इंडिया का बेस्ट रनर है अभी. पीटी उषा को जैसे जानते हैं, तो हिमा दास को उस तरीके से लोग जानते हैं. कोई छोटी सी गांव है असम से, कॉल्ड डिंग. शी इज वन ऑफ द 5 डॉटर्स ऑफ ए फार्मर. एंड क्या है कि उनका वो जो छोटी थी, 9 साल की एज की थी, तब वो फुटबॉल खेलते थे, खूब फुटबॉल खेलते थे बॉयज के साथ. लेकिन जो उनके जो फिजिकल एजुकेशन टीचर ने उनको स्पॉट किया कि वो एक्चुअली स्प्रिंटिंग में बहुत अच्छी है. शी कुड रन फ्रॉम वन एंड ऑफ द फील्ड टू द अदर फील्ड as good as maybe better than the boys. तो उन्होंने उनको एडवाइस दिया कि आप उसके बदले फुटबॉल के बदले स्प्रिंटिंग करो. And so at the age of 18 she became the Asian Games medalist at the age of 18. सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी. कर्णम मल्लेश्वरी को सब जानते हैं. तो उन्होंने जो है वो शी वाज अगेन वन ऑफ द 5 डॉटर्स. तो 12 साल की उम्र में क्या हुआ कि वो कोच है इन अपन्ना, उनके अंडर कोचिंग किए. और 12 साल की जब वो 15 साल की थी, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनको स्पॉट किया, उनको नेशनल कैंपर्स में उन्होंने डाला. और 18 साल की एज में वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बनी. और सिडनी, फिर वो 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2 एशियन गेम्स और सिडनी ओलंपिक्स 2000 में शी बिकम अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट. अगेन वेरी स्पॉटेड एट अ वेरी यंग एज. बहुत कम एज में जो थी, तो उनको उनकी कोच ने उनको स्पॉट किया. तीसरी एग्जांपल है दूती चंद. दूती चंद अगेन उनको अगर देखा जाए, दूती चंद को हर कोई जानता है. अभी वो बिलो पॉवर्टी लाइन में पैदा हुई थी. फैमिली बहुत पुअर थी, बहुत पुअर फैमिली से हैं. और उन्होंने 16 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन एशियन चैंपियनशिप. वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया. और दो मेडल से उनको एशियन गेम्स में मिले. तो अगर हम इन तीनों को एग्जांपल लेते हैं, या हम सचिन तेंदुलकर को एग्जांपल लेते हैं. सचिन तेंदुलकर 16 साल के एज में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, इमरान खान को फेस किया. तो और उनका जो कोच है सर जो थे अर्चेकर सर, वो कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई है. उन्होंने बहुत यंग एज में उनको स्पॉट किया. अलॉन्ग विद दैट उनके ब्रदर ने, बड़े भाई ने भी उनको सपोर्ट किया था. लेकिन सचिन तेंदुलकर 16 साल के बदले अगर 22 या 23 साल में खेलते हैं, तो 6-7 साल उनका लूज हो जाता. तो शायद उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है बना हुआ है, और शायद नहीं बनता. राहुल द्रविड़ ने 22-23 साल में क्रिकेट स्टार्ट किया, सचिन ने 16 साल में स्टार्ट किया. एंड दैट एक्चुअली इज अ ह्यूज डिफरेंस. 6 साल का जो गैप है, उसमें जो नंबर ऑफ रन्स और सारी चीजें जो रिकॉर्ड्स हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे ऑल दिस एथलीट्स आर ऑल अर्जुना मेडलिस्ट, सारे के सारे को अर्जुना मेडलिस्ट है. बट इन सबके लाइफ में कोई ना कोई द्रोणाचार्य रहा है. तो आप सारे लोग जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है, ऑल ऑफ यू आर द द्रोणाचार्यस फॉर ऑल द बडिंग टैलेंट.
तो बच्चे का जो टैलेंट आइडेंटिफाई करना, जो उनके टीचर्स हैं, भला वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो, मैथ्स के टीचर हो, साइंस के टीचर हो, सोशल साइंस को, लैंग्वेज के टीचर हो, बच्चा किसमें अच्छा कर रहा है, हम सबका ड्यूटी बनता है। तो हम फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स का हमारा ड्यूटी बनता है टू फाइंड आउट अबाउट how the child is doing from a fitness point of view, from a sports skills point of view, उनकी बाकी टीम प्लेयर बनने का है कि नहीं है, तो इंडिविजुअल गेम में अच्छे हो सकते हैं। अर्ली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम कहते हैं कि स्पॉट टैलेंट एट 8 एंड बिकम अ चैंपियन एट 18। तो मतलब कि आप 8 से 10 साल की उम्र में अगर हम टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिस भी एरिया में हो, स्पोर्ट्स का खाली नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज में हो, छोटे बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन 10, 11, 12 साल तक हमें पता चलता है रफली कि वो किस में इंटरेस्टेड होगा। और तो 18 साल तक हम उसको कौन सी एरिया में वो जा रहा है, तो उसमें ये स्पोर्ट्स में भी हो, ये इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, 18 साल इज ए वेरी गुड एज, ये हमें मोटा मोटा पता होता है कि किस में इंटरेस्टेड होना चाहिए। विद दैट एज अ पर्सपेक्टिव, तो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के लिए ये एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप हम जो बनाए हुए हैं कि हम ये कहते हैं पहली बार फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एमएचआरडी मिनिस्ट्री एक साथ मिलकर काम कर रही है। 2018 से पहले स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स के साथ काम करती थी और एमएचआरडी फिजिकल एजुकेशन में काम करते थे, उनका कोई लिंकेज ही नहीं था। 2018 में हमने लिंकेज बनाया ऑन ग्रासरूट डेवलपमेंट। हमें ये बोला कि अगर हर स्कूल अगर पार्टिसिपेट करता है, एवरी सिंगल स्कूल इन इंडिया पार्टिसिपेट, जिसमें 15 लाख स्कूल से और 30 करोड़ स्कूल गोइंग बच्चे हैं और 8 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, अगर हम उनके ऊपर टारगेट करते हैं एवरी चाइल्ड प्लेज इन इंडिया, तो सीबीएसई ने गाइडलाइन दिया था 60 मिनट्स ऑफ प्ले 2018 में। बाकी स्टेट बोर्ड्स और आईसीएसई सब लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलता है यही चीज है कि हर बच्चे को 60 मिनट खेलना चाहिए। अगर हम एक फिजिकल एजुकेशन पीरियड हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्कूल में पर डे, और बच्चों को फिजिकल एजुकेशन, फ्री प्ले, एक्टिव रिसेस, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, सब्स्टिट्यूशन पीरियड, या तो बच्चे घर में जाके कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, स्कूल्स में अगर हम कॉरिडोर्स को, हम सिंपल जो प्ले स्पेसेस है, अगर हम उनको फिजिकली एक्टिव प्ले स्पेसेस बना देते हैं, तो बच्चों को 60 मिनट्स खेलें। जितना ज्यादा बच्चे खेलेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो ट्राइंगल है ऊपर, जो पोडियम फिनिश की बात कर रहे हैं, स्कूल अगर बेस बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली टॉप भी बढ़ जाएगा। तो हम मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट्स इसीलिए अच्छा करते हैं क्योंकि हर बच्चा मैथमेटिक्स करता है, हर बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ता है, हर बच्चा सोशल साइंस पढ़ता है। तो इसीलिए हमारा जो टैलेंट पूल है, हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सारे लोग अभी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इंडिया की इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सारे लोग विदेश में काम कर रहे हैं। एक दिन होगा जब हमारे पास फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का जो कोचिंग सिस्टम अगर स्ट्रक्चर्ड हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हम भी जाके बाहर भी काम करेंगे और विल बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी का हम पार्ट बन सकते हैं। कुछ बच्चे जो है, सो अभी हम इसको 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी में काम कर रहे हैं। एक है अपग्रेडेशन ऑफ पी टीचर्स एंड कम्युनिटी कोर्सेज में, एक हो गया स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैसे रन करा स्कूल में, वो साई एलएनसीबी ट्रिवेंड्रम के पास जैसे अपनी रिस्पांसिबिलिटी है। ये अपना फर्स्ट सीरीज है, हम फर्स्ट सेट ऑफ पी टीचर्स के साथ अभी कर रहे हैं, बट ये कंटिन्यू होता रहेगा हर महीने में, पूरे टाइम पे ये कंटिन्यू होता रहेगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर और कम्युनिटी स्पोर्ट्स कोचिंग प्रोग्राम कोचेस को हम उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कराएंगे। दूसरा हो गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो कर रहा है, जो मेरी टीम काम कर रही है ऑन खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम। खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम करेंगे, आप स्ट्रक्चर्ड करिकुलम कराएंगे, लेकिन टर्म 1 एंड टर्म 2 के एंड में जैसे आपको बाकी सब्जेक्ट्स का रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है, तो हर बच्चे को फिटनेस असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। तो जब ये सिस्टम बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्सेलेंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड पोडियम लेवल पे हमारा अपने आप ही बढ़ जाएगा। क्रिकेट में जैसे बहुत सारे लीग बन गए, तो इस तरीके हर स्पोर्ट्स में भी बनेगा। तो धीरे धीरे करके हमारा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इंप्रूव हो जाएगा अगर स्कूल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए। तो अभी हमारा पूरे ये स्कूल सिस्टम इन्वॉल्व हो, तो ये स्ट्रक्चर रोड मैप पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, जितने प्रिंसिपल से, एचएम से और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, कि हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर पाए और नेक्स्ट सेट ऑफ चैंपियंस को हम ढूंढ पाए। पीवी सिंधु हो, बाईचुंग भूटिया हो, सुनील छेत्री हो, मनु भाकर हो, कोई भी हो, मतलब और कर्नल राठौर हो, अभिनव बिंद्रा, ऑल ऑफ देम। सो वी कैन फाइंड देम इन स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्लेसेस इंडिया। छोटी छोटी जगह से हम चैंपियंस को आइडेंटिफाई कर पाए। ये सॉरी,
तो खेलो इंडिया का ये सॉरी फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने विद दिस विजन पीएम ने एक खेलो इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। क्या है वो ऐप है, हम उसको देखते हैं, उसका पर्पस क्या है। यहाँ ढूंढो बाहर ढूंढो, घर में भी या बाहर ढूंढो, खेलते हो कि नहीं हो, अरे इंडिया के नए चैंपियन ढूंढो। फुटबॉल में, कबड्डी में, निक्कर में या चड्डी में, हॉकी में या टीटी में, रेस में या पीटी में, मम्मी भी और पापा भी, टीचर भी और मामा भी, अंकल आंटी बच्चा पार्टी ढूंढेंगे अब चैंपियंस भी। इसे खेले कहाँ खेले, चाहे गुरु हो या चले, कितने फिट हो यहाँ देखो, रूल सारे यहाँ सीखो। कितना तेज दौड़े देखो, कितना दूर कूद देखो, खेलते होंगे कहीं वो, अरे चलो खेले चैंपियन ढूंढो। खेले भी हिले भी। खेलो इंडिया ऐप के साथ आप भी ढूंढ सकते हैं अगले चैंपियंस। तो कोई फोन न रह जाए जिसमें ये ऐप ना हो, ताकि कोई चैंपियंस ना रह जाए जो डिस्कवर ना हो। अरे चलो खेले चैंपियन ढूंढो। खेलो इंडिया ऐप, चलो चैंपियंस ढूंढे। तो ये आपने देखा होगा, जो पीएम प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम एक सिस्टम करें, खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस प्रोग्राम। उसका बड़ा 2 प्राउंड अप्रोच है उसका। उसका एक है कि फिजिकल फिटनेस असेसमेंट हर बच्चे का हो, और तो बेसिकली हर बच्चे को जैसे एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, क्लास टीचर जब बच्चे को रिपोर्ट कार्ड दें टर्म 1 एंड टर्म 2 का, तो एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ वो फिटनेस के रिपोर्ट कार्ड वो दे पाए। तो ताकि हम देखें को बैलेंस बच्चा अगर 70% इन एकेडमिक से 70% फिटनेस में है, तो उसका फिजिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी जो है दोनों ही बैलेंस्ड है। इंस्टेड ऑफ कि कोई बच्चा 95 तो हो गया एकेडमिक से और बहुत ओबीस बच्चा है, अंडरवेट बच्चा है, तो कोई फायदा नहीं उसका, या तो उल्टा हो। तो हम ये चाहते हैं कि स्कूलों में बच्चों का फिटनेस इम्पोर्टेंट रहे, तो हर बच्चा जो है, तो हमें एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सिमिलरली है स्पोर्ट्स स्किल्स असेसमेंट है, और एक वो सिस्टम, एक सीमलेस सिस्टम बने जिसके थ्रू क्या है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो है वो टैलेंट को आइडेंटिफाई कर पाए अपने आप। इसमें कुछ स्कूल्स लेवल पे हमें हर लेवल पे हमें देखने की जरूरत नहीं, लाखों और करोड़ों डेटा जो when it comes to sports authority, they will know that based on the different parameters how do you spot talent. तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन छोटे एक एलिमेंट है, और मेजर एलिमेंट है कि उसमें हर बच्चे का फिजिकल फिटनेस असेसमेंट हो ऑल ओवर इंडिया। एंड ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये चीज करने के लिए बिना टेक्नोलॉजी का ये पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट ये प्रोग्राम जब आप यूज करेंगे, आप देखेंगे तो application that you are using is so much superior than other teachers. You should feel proud about it कि आप एक चीज को यूज करें जिसको बाकी टीचर्स के पास वो एबिलिटी नहीं है जो इसके पास है। वो स्कूल के अंदर ही रह जाते हैं, कोई साइंस टीचर और मैथमेटिक्स टीचर वो अपने अंदर ही रह जाते हैं। जो भी हम सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं जो यू आर पार्ट ऑफ ए नेशनल मूवमेंट, आप जो भी कर रहे हैं। इसके जो है अभी देयर आर अ सेटअप, जो खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट का जो है एक्सपर्ट कमेटी बनी थी 2018 में जुलाई में। तो उन्होंने क्लास 5 to 8 मतलब क्लास एज 5 to 8 मतलब क्लास 1, 2 और 3 के लिए सेटअप 3 पैरामीटर्स बनाए थे, बीएमआई, स्टैटिक बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। और 9 to 18 के लिए बीएमआई, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस। 9 to 18 ईयर्स मतलब क्लास 4 से लेकर 12 तक है, और पहला वाला जो है क्लास 1, 2 और 3 है। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि क्लास 1, 2 और 3 के जो बच्चे होते हैं उनको फंडामेंटल मूवमेंट स्किल सिखाते हैं, बेसिक स्किल सिखाते हैं, रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग, वॉकिंग, फिर उसमें कैचिंग, थ्रोइंग, किकिंग, ये सारे बेसिक स्किल सिखाते हैं बच्चों को। फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स है, लोकोमोटर, मैनिपुलेटिव और बॉडी मैनेजमेंट स्किल्स। उसके बेसिस में तो हमारा जो बेसिक आउटकम है कि बच्चों का बैलेंस अच्छा होना चाहिए, बीएमए ऑफ कोर्स अच्छा होना चाहिए, और उनका जो कोऑर्डिनेशन है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, वो अच्छा होना चाहिए। मोटा मोटा हम क्लास 1, 2, 3 के लिए बहुत सिंपल चीज देख रहे हैं। लेकिन 9 to 18 जो है इज व्हेन एक्चुअली दे आर स्टार्टिंग टू फॉर्म सम स्किल्स। उसमें कुछ स्किल डेवलपमेंट होता है, फिर उनके बेसिक हेल्थ बेस्ड फिटनेस होना चाहिए, वो सारी चीजें डेवलप होता है। तो क्लास 4 से लेकर 12 तक जो है बैटरी ऑफ 6 टेस्ट है। कि क्या टेस्ट है ये सारे आपके सामने मैंने रख दिया हूँ, सबकी वीडियोस अवेलेबल है ऑन schoolfitness.kheloindia.gov.in. So now I will request Neeraj to take us through the battery of test. Neeraj, you can take it over. Sure, sir.
ये ऊपर क्लिक कर सकते, you don't need to click on the panel. ऊपर slide में click. Directly we are going for the Redshift test. Fine, sir. Okay. Okay. Am I audible? Yeah, audible. As sir, I've told you that खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं, सर ने ऑलरेडी बताया कि इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया. वी हैव डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. First age group of 5 to 8 means class 1 to 3, in which we have 3 parameters: BMI, static balance, and coordinative abilities. And then we have 9 to 18 age group, class 4 to 12, we have BMI, speed, endurance, flexibility, core strength, and muscular strength. So first I'll take you to the primary. Class 1 to 3 के fitness test हमें कौन से हैं, कैसे लेने, what are the parameters, उसके protocols क्या हैं, what are the how we should take that test. सबसे पहले हम लेते हैं BMI. BMI एक पैरामीटर है. What does BMI? We all know कि बच्चे की height और weight का एक बैलेंस जो होता है वो स्केल वाइज वो. नीरज, यस सर, आपको वो वाला करना है ना, वो जो ये जो स्कूल के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. ओके सर, एक्चुअली यू सेड नो, मैंने वही है ना, आपको जो कंटिन्यू करना है. श्योर सर. Okay, sorry for the interruption. Okay, let's begin from हमें ये टेस्ट करने हैं, लेकिन टेस्ट करने से पहले we have to complete some of the technicalities. कुछ टेक्निकल चीजें IT रिलेटेड हमें कंप्लीट करनी है, क्योंकि हमें इसमें एप्लीकेशन से टेस्ट लेना है. एक एप्लीकेशन से हम ऐप से मोबाइल के थ्रू टेस्ट ले रहे हैं, तो उससे पहले हमें स्कूल का डैशबोर्ड रेडी करना है विद अलॉन्ग विद द डेटा. तो उसका सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल. आपको अपने स्कूल को रजिस्टर्ड करना है. आपको अपने स्कूल को कहाँ रजिस्टर्ड करना है? आपको क्रोम पे जाके schoolfitness.kelloindia.gov.in टाइप करना है. जैसे आप वो टाइप करते हैं क्रोम पर, ये जो खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस प्रोग्राम, एक छोटा वाला ब्लैक स्क्रीन देखें, ये इंटरफेस ओपन होकर के आता है. सो उसके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन करना. कैसे करना? हाउ टू रजिस्टर योर स्कूल, हाउ टू गेट द स्कूल यूजर नेम एंड पासवर्ड, जिसके थ्रू आपके स्कूल की सारी फंक्शनिंग होगी. तो सबसे पहले हमने अपने स्कूल को रजिस्टर्ड करना है खेलो इंडिया के साथ. और वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे मैंने बताया, क्रोम पर हम जाएंगे, खेलो इंडिया fitness.kelloindia.gov.in पर हम गए. उसके बाद हमने वहां साइन अप, जो इंटरफेस ओपन होकर के आया, उस पर हमने साइन अप पे क्लिक किया. साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आएगा. या आप वीडियो देखे, साथ साथ आई विल बी ऑल्सो एक्सप्लेनिंग यू सो दैट इट इज क्लियर टू यू. इट इज लिटिल टेक्निकल, लेकिन ध्यान देंगे तो आप इसे कर पाएंगे. इट्स नॉट टफ बट रिक्वायर्ड योर अटेंशन. To sign up on Khelo India National Fitness Program for schools, go to School Fitness. Is it audible? Yeah. fitness.kelloindia.gov.in. Click on this sign up button. This new school self-registration page will open. Certain school details will. The moment आपने साइन अप पर क्लिक किया, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें लिखा न्यू स्कूल सेल्फ रजिस्ट्रेशन. आपको अपने स्कूल की ऑफिशियल डिटेल्स के साथ इसमें साइन अप करना है. दिस इज द इंटरफेस विल कम आफ्टर वंस यू साइन अप. Will be required. Select board or school chain. After that, select your board. Enter your school UDICE code. Select zone. Select region. Select state. Select city. Here, keep it in mind, you are filling your school official details. Zone, region, state, city, your UDICE code, everything which is in your school details. So, जब भी आप इसको sign up करने के लिए start करें, you should have all these details in hand. आपके पास ये सारी details handy होनी चाहिए, school की official details. When you are signing up for this page. Enter your complete school name. Select shift, morning or evening.
Enter your school official mail ID. Some schools run in 2 shifts. Fine. So that's why it's given morning और evening. जिस भी shift में आपका स्कूल चलता है, दोनों shift में चलता है, दोनों भी क्लिक कर सकते हैं. आपको अपने स्कूल की शिफ्ट्स, जिनका स्कूल एक ही शिफ्ट में चलता है, उनको सिर्फ मॉर्निंग करनी है. One OTP is sent on this mail ID. Whatever official email ID you are putting up in this, जो आप अपनी official email ID submit कर रहे हैं, जो official mobile number आप submit कर रहे हैं, make sure that is accessible to you that time. आप उसको वो आपके पास accessible होना चाहिए उस वक्त, क्योंकि आपको एक OTP आएगा उस मेल पर और उस मोबाइल नंबर पर, जो कि आपको सबमिट करना है, जो कि आपको वेरीफाई करना है. Once you will verify that, then उसके आगे का प्रोसेस होगा. तो वो email address, वो email and that mobile number, both should be handy to you that time, at the time of signing up. Enter that OTP. Verify. OTP verified successfully. Click on this close button. Enter your school mobile number. OTP has been sent on your mobile number. Please enter that OTP. जैसा कि मैंने बताया, keep that mobile and that email accessible to you, क्योंकि आपको हैंड टू हैंड इस तरह के एक स्क्रीन डिस्प्ले होगा, उसमें आपको वो OTP टाइप करना है, उसको वेरीफाई करना है. Click on verify button. Close. Enter your complete school address. Enter school website address. In school description, enter approx strength of your school. School admin details. Here you will be filling in the school admin details. आप अपने your headmistress of your school, headmaster of your school, your principal, head of your institution details should be here. आपके institution के जो head है, उनकी details यहाँ पर आएंगी. Enter the name of your school HM or principal. Select designation. Select gender. Enter CAPTCHA. Check the entries that you have made. Always check before submitting. हमेशा एक बार सबमिट करने से पहले अपनी एंट्रीज को रिव्यू कर लीजिए कि कोई गलत एंट्री नहीं चली जाए, क्योंकि फिर उसको रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस. तो बेटर है इसको सबमिट करने से पहले एक बार चेक करिए कि आपकी, क्योंकि ये सारी ऑफिशियल डिटेल्स हैं, आपने सही दी होगी जो आपके एज पर द स्कूल रिकॉर्ड्स है. Click on submit button. One message has come. School added successfully. Now you have received one mail on your school official mail ID. This is the mail. This is welcome. Okay. The moment जैसे ही आपका स्कूल सबमिट हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, आपके पास एक ऑफिशियल ईमेल आएगा, आपके पास उस ईमेल एड्रेस पर आएगा जो आपने साइन अप के वक्त वहां पर एंटर किया है. उस मेल में आप, that's a key mail. You can consider it as a key mail. You will get always all the solutions in this mail. यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल ही रहा है. उसके साथ साथ along with that you will be getting all the steps, process, all the admin manual, videos of test, everything, all the key details you will be having into this mail. Step by step, how to go to this program, how to execute this program, step by step, everything you will be getting. How your assessor will get attached with the school, how to, from where to get that application, how to upload the data, how to take tests, all
the details along with the video and PDF. All the formats you will be getting here. So it's a very important mail. Along with your username and password, you will be getting all these details also. अपने username और password के साथ साथ आपको इस प्रोग्राम को रन कैसे करना है, इस प्रोग्राम को आपको रजिस्टर्ड कैसे करना है, इसको आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है, सारी डिटेल्स आपको इस मेल में मिलेंगी. सबके की लिंक्स आपको इस मेल में मिलेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेल. Welcome mail for school principal or HM. This mail is of school activation on Khelo India school portal. These are account details for Khelo India school portal. To get started, you have to follow these steps. First of all, click on this schoolfitness.kheloindia.gov.in. This Khelo India portal gets open. Click on this login button. Enter the user. You have signed up with that portal. आपने उसको साइन अप कर लिया है, आपका स्कूल रजिस्टर्ड हो चुका है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल चुका है. अब उसको आपको लॉग इन करना है. साइन अप के बाद अब जब भी आप करेंगे आप इसको लॉग इन करेंगे. लॉग इन के लिए जो आपको ईमेल में आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया, अब वो यूजर नेम और पासवर्ड इसको यूज करेंगे लॉग इन करने के लिए. और लॉग इन करने के लिए उसका इंटरफेस कैसे आता है, फर्स्ट इंटरफेस आफ्टर लॉग इन वी विल सी इन दिस. User ID and password which you have received. Enter CAPTCHA here. Click on sign in button. This is home page of Khelo India portal. School fitness app statistics. Till now students data has not been uploaded. Neither the assessors are approved. When you sign up, जब आप इसको साइन अप करते हैं, इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा आपके स्कूल के डैशबोर्ड का, आपके स्कूल के पोर्टल का, जिसमें वेलकम में आपके प्रिंसिपल का नाम होगा और उसके बाद आपके स्कूल की स्टैटिस्टिक्स होंगी कि हाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्रूव. लेकिन क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम इसको लॉग इन करा है तो अभी हमने डेटा अपलोड नहीं किया. इट विल बी रिफ्लेक्टिंग 0 स्टूडेंट्स and 0 assessor because first time we have login, and after this we will upload the student data. How to upload the student data, that we will see in another video. So this is how you sign up on Khelo India portal. Thank you. To sign up on Khelo India National Fitness Program for schools, go to. So this is how you sign up on Khelo India portal. Thank you. This I have explained you confirmation mail. Confirmation mail आपके पास जो आएगा की मेल, उसमें आपके पास सारे स्टेप्स हैं, सारे लिंक्स हैं आपके पास कि उसको आपको कैसे, और मैनुअल से लेके वीडियोस वगैरह सब आपके पास है. अब हमारे पास हमने स्कूल रजिस्टर्ड कर लिया है. इन केस सेकेंड इज दिस कि कई बार होता है क्योंकि हम 2 टर्म्स में वी आर डूइंग असेसमेंट्स, हम 2 टर्म्स में असेसमेंट्स कर रहे हैं और हम स्कूल का जो पोर्टल है 2 बार ही एक्सेस करें. अदरवाइज सारा काम जो हमारा हो रहा है रिलेटेड टू असेसमेंट, इट इज हैपनिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑन द मोबाइल. सो समटाइम इट हैपन कि हमारा जो पासवर्ड होता है वी कैन लूज है. तो अपने अकाउंट को हमें रिकवर कैसे करना है, आप अपने अकाउंट रिकवर में जाएंगे, स्कूल, यूडाइस कोड्स, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, इनमें से कोई भी आपके पास डिटेल है वो आप इसको इसमें फिल करिए. द मोमेंट आप इसको फिल करेंगे कैप्चर डालने के बाद, वहां पर आपके पास आपका रिकवरी अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगे. आपको आपके पास डिटेल्स आएंगे तो यू कैन रिकवर योर अकाउंट फॉर दैट. अब आ रहा था हमारे कि हम अपने एसेसर को अटैच कैसे करेंगे कि भाई हमने स्कूल को रजिस्टर्ड कर लिया. फर्स्ट स्टेप वी हैव रजिस्टर्ड आवर स्कूल. नाउ द सेकंड काउंटर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज एसेसर. जो असेसमेंट्स लेगा उसको हम कैसे वो कैसे अटैच होगा, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज हैं. So very first, go to Google Play Store, download School India application, which is a school version. वहां पर आपको Khelo India Fitness Assessment 2 एप्लीकेशन मिलेंगी. One is a yellow phase, one is a white phase. White interface वाली जो है वो स्कूल वर्जन है जो हमें डाउनलोड करनी है. Yellow one is a जो जिसका इंटरफेस येलो है. Yellow one is for the parents. That we will be telling you in the next session. But अभी हम we are talking about कि assessor
एक PE टीचर उसको कैसे बच्चे को एसेस करेगा, उसके लिए हमें फर्स्ट वी हैव टू गो टू द Google Play Store, we have to download, we have to install, and then we have to sign up. And how to sign up, please go through this. This is Khelo India application. Please click on Start Fitness Assessment. Click on Sign Up button. Please enter your name. Make sure two things are here. One is this, कि हमने जब स्कूल रजिस्टर्ड किया था, वी हैव पुटेड आवर ऑफिशियल डिटेल्स, और जब हम एप्लीकेशन में साइन अप कर रहे हैं, वी विल बी फिलिंग अप आवर पर्सनल डिटेल्स, अब वो पर्सनल मोबाइल नंबर, वो पर्सनल ईमेल एड्रेस, जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं उसी वक्त, बिकॉज सेम द OTP विल बी कमिंग फॉर द वेरिफिकेशन. सो हमें यहाँ पे पर्सनल डिटेल जो हम एक्सेस करते हैं वो फिल करनी है. Enter your correct email address. It should be your personal email address. Please enter your phone number. Enter your school address. It is optional. Please enter your state. Your school address is optional because आपको एक trainer ID मिलेगा. उस trainer ID के through, if you are working in 2 schools, अगर आप 2 schools में काम करें, तो दोनों school आपको attach कर सकते हैं अपने school के data से assessment लेने के लिए. इसलिए यहाँ पर school address optional है, क्योंकि कई बार होता है कि you people are working in 2 schools. 3 days somewhere, 3 days somewhere. So that's why. तो आपका जो यहाँ पर ट्रेनर आईडी आएगा, उससे आपको कोई भी स्कूल अटैच कर सकता है. Mine is Delhi East. Enter your district. Enter your city name. Enter your block. Enter your qualification, gender. Have you attended any TOT? Please select this. If TOT, टीचर्स ट्रेनिंग, अगर आपने कोई टीचर्स ट्रेनिंग अटेंड, मतलब TOT ऑफ खेलो इंडिया अटेंड किया है आपने, आपको उस वक्त वहां पर एक TOT दिया गया होगा, एक कोड दिया होगा. अगर आपके पास आपने अटेंड किया वो है, देन यू सबमिट दैट. अगर आपने ऑफलाइन TOT अटेंड नहीं किया है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं. If you are attending any TOT, and if you are not attending, please leave it. Take the remaining 2 boxes and click on Sign Up button. The moment you will click on the sign up button, जैसे ही आप sign up button पर क्लिक करेंगे, आपके पास आपका registration status आएगा, that you have registered successfully and your trainer ID is so and so, कि आप registered हो चुके हैं और आपकी ये trainer ID है, और आपको उस trainer ID को screenshot ले लेना है, क्योंकि जब आपके स्कूल के पोर्टल से आपको अटैच किया जाएगा, आपको असाइन किया जाएगा वहां से, उस वक्त आपको इस ट्रेनर आईडी की जरूरत होगी. So take a screenshot of that time trainer ID. You will be requiring it at the time of managing SSR. So this is the trainer ID. You have to take screenshot of it, and when we will go to manage SSR on Principal HM portal, it will be required. Thank you. Okay. जैसे स्कूल रजिस्ट्रेशन के बाद एक ईमेल आया था प्रिंसिपल को, सेम आपने जो अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस डाला है, आपको भी एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा जिसमें इसकी डिटेल्स होंगी, इसका स्टार्टअप होगा, इसके सारे वीडियोस होंगे, सारे मैनुअल्स होंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा. आपको जिस यूजर नेम एंड पासवर्ड से आप एप्लीकेशन को
ऑपरेट करेंगे, वो डिटेल्स आपके मोबाइल में, आपके ईमेल में आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा आफ्टर साइनिंग अप इन द ऐप। 2 स्टेप्स हमने कर लिए, स्कूल को रजिस्टर्ड कर दिया हमने एसएसआर को भी साइन अप करा दिया, एसएसआर ने डाउनलोड करके साइन अप कर दिया, एसएसआर इज आल्सो रेडी। अब हमारे 2 इंपॉर्टेंट काउंटर पार्ट्स रेडी है। अब नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंटर पार्ट इज स्टूडेंट, कि हमारे पास उस एप्लीकेशन में स्टूडेंट की डिटेल कैसे आएगी। तो उस एप्लीकेशन में स्टूडेंट की डिटेल आने के लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट डेटा जो है पोर्टल पे अपने स्कूल के डैशबोर्ड पर, जो कि हमने स्कूल रजिस्टर करने के बाद हमारे पास आया है, उसमें हमें अपने स्कूल का डेटा अपलोड करना है, अपने स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड करना है। So now as you have received user ID and password for your principal HM, so first of all what you have to do now is you will go to schoolfitness.kheloindia.gov.in. After that you will click on login button. Enter the user ID and password here which you have received. लॉगिन करने के लिए जो आपको कंफर्मेशन मेल प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन के टाइम आया था, वो आप डिटेल ऑफिशियल डिटेल्स डाल रहे हैं। आप ऑफिशियल आपके स्कूल का जो यूजर नेम और पासवर्ड आया था, आप जब भी स्कूल का पोर्टल लॉगिन करेंगे आपको वो ईमेल, आपको वो यूजर नेम एंड पासवर्ड्स डालने हैं। Enter CAPTCHA. Click on this sign in button. So this is the page. बिकॉज आपने अभी तक कोई स्टूडेंट डेटा अपलोड नहीं किया, तो जब भी आप साइन अप करेंगे बिफोर अपलोडिंग द स्टूडेंट डेटा, दिस हाउ दिस इंटरफेस विल कम। द स्टूडेंट डेटा इज शोइंग हियर 0, so which we are going to upload Of your school for Khelo India, and these are school fitness app statistics. Here you can see till now no student has been uploaded. So to upload students data we have to go on student. We will click on student data upload. Now by default my second tab students, and on the students you will click on the student data upload. The moment you will click on the student data upload, जैसे ही आपने student data upload पर क्लिक किया, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होकर के आ रहा है। यहाँ पर ये इंटरफेस आएगा जिसमें आपको सबसे पहले अपना स्कूल सेलेक्ट करना है। school name is already there. I have to select profile. I will select it as personal profile. Now you can see Whenever you will go to select profile, there will be coming personal profile. Always select personal profile which has 2 capital P. आपको उसको रीनेम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 3 orange colored buttons have come up. So The moment you will select personal profile, जैसे ही आपने personal profile select किया, ये 3 ऑरेंज बटन्स आपके सामने ओपन हो रहे हैं, जिसमें पहला बटन है डाउनलोड टेम्पलेट, दूसरा है सैंपल डेटा, तीसरा है अपलोड। What is टेम्पलेट? डाउनलोड टेम्पलेट। डाउनलोड टेम्पलेट एक ब्लैंक एक्सेल फाइल है, रेडीमेड एक्सेल फाइल है, जिसमें आपको अपने इसको डाउनलोड करके अपने स्कूल का डेटा आपको कॉपी पेस्ट करना है। इसमें आपको कोई एक्सेल फाइल बनानी नहीं है, एक रेडीमेड एक्सेल फाइल आपको डाउनलोड टेम्पलेट के थ्रू दी जा रही है, उसमें आपको अपने स्कूल का डेटा कॉपी पेस्ट करना है। अब वो डेटा करना किस फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या टाइप करना है, वो उसके लिए आपको सैंपल डेटा में आप क्लिक करेंगे तो एक फाइल ओपन होकर के आएगी। आप उस फाइल में देखेंगे जिस तरह से उसमें डिटेल्स दी गई हो, सेम मैनर आपको डाउनलोड टेम्पलेट में अपने स्कूल की डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद उस फाइल को अपलोड करना है। first of all click on this download template. One Excel sheet named personal profile will get downloaded. Open this file. So in the first row you can see there are 2 colors. First one is orange and the second one is yellow. The fields, The moment आपने जैसे ही डाउनलोड टेम्पलेट को ओपन किया, इस तरह की एक A2 के आपके पास ये एक्सेल फाइल ओपन होकर के आ रही है, जिसमें A to H, जिसमें डार्क ऑरेंज कलर के
जो कॉलम्स हैं वो मैंडेटरी हैं, आपको वो फिल करने ही करने हैं, अदरवाइज वो सर्वर उस फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो ये येलो कलर की एंट्रीज हैं, योर फेवरेट स्पोर्ट्स, हॉबीज, डोमिसाइल, ये आपकी ऑप्शनल है। आपके अगर आप फिल करना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहते हैं देन ऑल्सो इट इज ओके, तब भी इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन ये ऑरेंज कलर में जो हमारी एंट्रीज है, स्कूल कोड, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एडमिशन नंबर, नेम, जेंडर, क्लास, section, roll number, DOB, it is mandatory and mandatory in the same format as given in the sample data. In the orange color are mandatory for you and the fields in yellow are not mandatory for you. So you are required to fill up all the fields that are in orange color. In the first column, you have to enter school code. In the second column, you will enter student admission number. In the third column, name of the student. After that, gender, class, section, roll number, and date of birth. When you are filling these entries, जब आप इन entries को fill कर रहे हैं, make sure the format is same. Once you are writing the gender, it should be male, female, means class 1 to 12 all should be same. क्लास 1 to 12 को हमको सबको सेम रखना है। ऐसा नहीं है कि 1 to 3 में आप डाल दें बॉयज गर्ल्स एंड 4 ऑनवर्ड आप डाल दें मेल फीमेल। सेक्शंस में आप डाल रहे हैं ABCD फॉर्मेट डाल रहे हैं, फिर क्लास 1 2 का आप फ्लावर्स के नेम डाल दें, या सन मून, एंड सम स्कूल्स कीप सेक्शन नेम्स लाइक दिस आल्सो फॉर द प्राइमरी विंग। You have to rename them. All the sections has to be put it in ABCD only. The same format has to be there. आप DOB डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं तो DOB का जो DD, MM, YY, ये जो फॉर्मेट है आपको इसी फॉर्मेट में सारी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यू कैन नॉट चेंज इट कि आपने DD, MM मंथ में आपने फिर उसको स्पेल डाउन कर दिया। नो, सेम फॉर्मेट, मेक श्योर इसको सेम इसी फॉर्मेट में रखना है जो सैंपल डेटा में आपको दिया जा रहा है। इसीलिए आपको एक सैंपल डेटा दिया जा रहा है, so that you know कि how to fill the entries. Save the data. Now click on this choose file button. Select personal profile in which we have uploaded students data. Click on open. After that, click choose file. Never rename your file. जो आपको फाइल, जो टेम्पलेट डाउनलोड टेम्पलेट आपको दिया गया है जिसका फाइल नेम है पर्सनल प्रोफाइल विथ बोथ द पीस कैपिटल, लेट इट रिमेन सेम। उसको पर्सनल प्रोफाइल 1 और अदर योर स्कूल नेम के साथ किसी और नाम के साथ आपको रीनेम नहीं करना उस फाइल को, अदरवाइज वो सर्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको अपलोड नहीं करेगा। तो आपकी जो फाइल है उसका नेम मेक श्योर पर्सनल प्रोफाइल ही रहना है। click on this upload button. Now we have successfully uploaded the student. The moment you will upload, आपको immediately नीचे मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर अपलोडिंग डेटा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड। अगर आपकी फाइल एक्यूरेट है, सही है आपकी फाइल, तो ये मैसेज आपको आएगा और आपका डेटा अपलोड हो जाएगा। बट बाय चांस अगर आपके पूरे फाइल में कहीं कोई मिस्टेक्स है, आपने 1000 बच्चों के नाम टाइप किए हैं, कॉपी पेस्ट किए हैं, किसी फॉर्मेटिंग में कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? आपको इमीडिएटली इसी लाइन पर एक रेड कलर से एक मैसेज आएगा कि आपका जो एरर फाइल है आप उसको डाउनलोड करिए, आपकी फाइल में मिस्टेक है। और अभी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो उस एरर फाइल में आउट ऑफ 1000 और 2000 और 500 जिस भी रो में और कॉलम में आपकी जो भी मिस्टेक हुई है, वो इमीडिएटली आपको बताएगा कि सच एंड सच रो, सच एंड सच कॉलम, दिस इज मिस्टेक। उस मिस्टेक, उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस्टेक भी आएगा कि आपने डेट ऑफ बर्थ इज नॉट इन अ राइट फॉर्मेट, योर स्कूल कोड इज नॉट मैचिंग, तो आप उसको उस पर्टिकुलर कॉलम में जाके रेक्टिफाई कर सकते हैं, so that it is easier for you. Students data. One message has come up. Thank you for uploading the data. Your request has been submitted. So this is how we upload the students data. Click on home button. Now you can see the student. Once you have uploaded your data, you will go to the home button. जैसे ही आप अपना स्टूडेंट डेटा अपलोड करेंगे, आप होम बटन पर जाएंगे। वहां पर यहाँ जो डिस्प्ले में दिख रहा है आपको,
दिस इज 9 स्टूडेंट्स अपलोडेड बिकॉज इट्स अ सैंपल डेटा. हमने सिर्फ एक ट्रेनिंग पर्पस से 9 स्टूडेंट्स का सैंपल डेटा अपलोड करके आपको दिखाया है, लेकिन आप अपने पूरे स्कूल का डेटा अपलोड करेंगे एज पर द नंबर ऑफ योर स्कूल. इट कैन बी 5000, इट कैन बी 100, इट कैन बी 500, इट कैन बी 1000 एज पर द नंबर. सेम रिफ्लेक्ट होगा. 9 is it's a dummy here for your training purpose. Documents which we have uploaded can also be seen on this home page. This is how we upload the students' data. Thank you. So now, as you have received user ID and password for your principal HM, so first of all, what you have to As I have discussed with you, how to आपके पास जैसे आपने डेटा अपलोड किया, आपके पास डेटा या तो अपलोड हो जाएगा. अगर आपके डेटा में कहीं कोई मिस्टेक है, आपको एक फाइल वहां से आएगी कि दैट इज एरर रिजॉल्विंग फाइल. अब वो कैसे आएगी और उसको कैसे रेक्टिफिकेशंस करने, दैट वी आर शोइंग इन दिस वीडियो. if some errors come in uploading students' data, let's see how to rectify them. First of all, go to schoolfitness.kheloindia.gov.in. Click on this login button. Simply first we are login, then uploading, और उस अपलोडिंग के बाद आपको एरर मैसेज आएगा. Enter user ID and password. Enter CAPTCHA. Click on sign in button. Select student. Student data upload. Select profile. Click on download template. Open this. This same we are doing. ये अभी तक जो हम कर रहे हैं, ये स्टेप्स हम डेटा अपलोड कर रहे हैं. ठीक है, हम डाउनलोड टेम्पलेट कर रहे हैं, डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे. सेम फॉलो वी आर डूइंग इट. मतलब हम उसी प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं. Personal profile sheet. So this is the Excel sheet where you have to upload the students' data. Here you will enter school code. This is the school code which you have to enter. Here you will enter student admission number, name of the student, enter gender here. You can enter gender in the form of male, female, boy, girl, M, F, B or G. Class you have to enter in Roman form. Enter alphabets in section. Enter roll number here. Date of birth. In date of birth you have to follow the format of dd/mm/yyyy. डेटा अपलोड में अपनी टेम्पलेट फाइल में आपने मैंडेटरी एंट्रीज को गिवन फॉर्मेट में टाइप करना है, पेस्ट करना है. मतलब आप एज पर योर कन्वीनियंस आपको इस गिवन फॉर्मेट में अपनी डिटेल्स को फिल करना है. So this is the dummy data which we have entered. Save this data. Now let's try to upload this data. Click on choose file. Open personal profile sheet. Click on upload button. The moment you have click on the upload button. पिछली वीडियो में हमने देखा हमारा डेटा सक्सेसफुली अपलोड हो गया. इफ देयर इज एनी मिस्टेक, अगर किसी को फाइल में कहीं पर कोई मिस्टेक है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी ये हमें दिखा रहे हैं. यहाँ पर मैसेज आएगा, रेड कलर में मैसेज आएगा, सम एरर हैव बीन डिटेक्टेड इन एक्सेल शीट. कुछ एरर्स आपकी एक्सेल शीट में मिले हैं और वो एरर्स क्या हैं वो आप इस शीट को डाउनलोड करिए और आपके पास डिटेल आएगा कि कौन सी रो में कौन सा एरर है जिसको आपको रेक्टिफाई करना है और उसको फिर री-अपलोड करना है करेक्शन के बाद. Some errors have been detected in Excel sheet. Download the error log file and rectify your sheet accordingly. Click on this download button. Open this sheet. So
द मोमेंट आपने जैसे ही आपने उसको एरर शीट को डाउनलोड किया, आपके पास नंबर ऑफ किस रो में क्या मिस्टेक है, क्या उसकी एरर डिटेल्स हम आपको पूरा बताएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है रो नंबर 10 स्कूल कोड इज नॉट मैचिंग विद द सिलेक्टेड स्कूल। मींस आप जिस स्कूल के पोर्टल से आपने लॉगिन किया हुआ, जो स्टूडेंट का डेटा आप अपलोड कर रहे हैं और जो आपने स्कूल कोड है, स्कूल कोड आपने गलत टाइप कर दिया। सो मैच विद योर स्कूल कोड। आप डुप्लीकेट स्टूडेंट यूआईडी मींस समटाइम हो सकता है कि एक ही क्लास में एक ही बच्चे को आपने 2 रोल नंबर्स 2 रजिस्ट्रेशन नंबर्स दे दिए हो, जो कि नॉट पॉसिबल। रजिस्ट्रेशन नंबर इज ऑलवेज यूनिक। तो अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री है तो भी वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको बताएगा। कोई फॉर्मेट मिस्टेक है, आप देखिए लास्ट में दिया हुआ डीओबी इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, कि आपने उसको डीडी एमएम वाईवाई के फॉर्मेट में ना करके उसको किसी और फॉर्मेट में अगर कर दिया है, तो वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करेगा कि आपकी ये मिस्टेक है विच यू हैव टू, और इस रो में ये मिस्टेक है जो आपको रेक्टिफाई करनी है, देन करेक्ट इट एंड री-अपलोड योर डेटा। So these are error details. In row number 10, school code is not matching with the selected school. In row number 2, duplicate student UID. In row number 3, duplicate student UID. And again in row number 3, date of birth is not in correct format. So let's correct these details. Go to the personal profile sheet. आपने जो पर्सनल प्रोफाइल शीट बनाया था, वो जो डेटा, उस डेटा ने जहां पर जिस कॉलम में वो आपको वो गलती दिखा रहा है, वो एरर दिखा रहा है, you go to that particular column, particular row and correct the data. Whatever the details have given that your DOB is not in the right format, to put the DOB in the right format. Your school code is not matching, put the right school code. Change the school code. Correct student admission number. Correct the date of birth here. Save the changes that you have made. Now try to re-upload the personal profile sheet. Click on choose file. Select personal profile sheet. Open. Click on Again, it's a reminder, don't rename your profile name. अपने personal profile को rename नहीं करना है, उसको after every correction also it has to be personal profile. No personal profile 1, personal profile 2, because ऐसा होता है कि हम उसको कई बार डाउनलोड करते हैं, सेव करते हैं, तो वो रीनेम होता है। Don't rename, keep it at personal profile, otherwise वो एक्सेस नहीं लेगा सर्वर। upload button. One message has come. Thank you for uploading the data. Your request has been submitted. So this is how you upload the student's data. And if error comes, you rectify this way. ये हमने अपनी स्टूडेंट डेटा को अपलोड किया, और अगर उसमें कोई एरर आया, वो एरर हमें एक एरर शीट, प्रॉपर एक्सेल एरर शीट हमें आएगी कि आपके एप्लीकेशन में ये सॉरी आपके डेटा में ये गलतियां हैं, आप उसको रेक्टिफाई करिए। और उसके बाद आपने उसे अपलोड किया, उस अपलोड के बाद आपको एक ग्रीन कलर में एक मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर अपलोडिंग डेटा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड। Thank you. Okay, 3 basic steps and important steps we have done. We have registered our school, our assessor have downloaded the app and sign up that. We have uploaded the student data. हमने student data upload कर दिया है, हमारा पोर्टल रेडी है, सो अब हमारे पोर्टल में हमें जैसे कि हमने बताया कि हमारा एप्लीकेशन बहुत स्मार्ट एप्लीकेशन है। आपको जब भी आप असेसमेंट्स लेंगे, आपको स्टूडेंट का नेम, क्लास कुछ टाइप नहीं करना है, कुछ सर्च नहीं करना है, आपको बच्चे का टेस्ट लेना है और उसका आईडी कार्ड स्कैन करना है। अब ये कौन सा आईडी कार्ड है जो आपको स्कैन करना है? ये क्यूआर बेस्ड आईडी कार्ड है जो आपको इसी पोर्टल से जनरेट करना है, हर स्टूडेंट का आईडी कार्ड, और उस बच्चे को देना है। तो जब भी वो बच्चा वो टेस्ट परफॉर्म करेगा, तो आपको सिंपली कंडक्ट द टेस्ट एंड स्कैन द कार्ड। यू डू नॉट नीड टू सर्च द डिटेल्स कि बच्चे का नाम, क्लास, मैनुअली आपको कुछ टाइप नहीं करना है। तो अब वो क्यूआर आईडी कार्ड जनरेट कैसे करना है हमें,
This we will be learning in this video. Now to download students fitness ID cards, first of all you have to log in. Enter principal हम स्कूल पोर्टल पर अपने गए, स्कूल डैशबोर्ड पर हम लॉगिन कर रहे हैं. HM user ID and password. Enter CAPTCHA. Click on sign in button. Now here you have to go on student. Click on student log. Okay. Second tab, students. Student data upload at the time of student data upload. उसी के नीचे सेकंड टैब में सेकंड कॉलम में आता है स्टूडेंट लॉगिन पासवर्ड. यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और स्टूडेंट आईडी कार्ड जनरेट करेंगे. Login password. Select the school. द मोमेंट आपने जैसे ही उस सेकंड टैब पे क्लिक किया स्टूडेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड पर, लॉगिन पासवर्ड पर आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे और जैसे आप क्लास सेलेक्ट करेंगे और आप व्यू क्लिक करेंगे. व्यू के बाद आप एज पर द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, यहाँ पर हमने डाला शो 10 एंट्रीज. इट कैन बी 25, इट कैन बी 50. आपके पूरे क्लास का डिटेल्स यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगी. उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में 3 टैब्स हैं जिसमें प्रिंट फिटनेस आईडी कार्ड. इस प्रिंट फिटनेस आईडी कार्ड से आप व्यू करने के बाद उस आईडी कार्ड को प्रिंट करके हम बच्चों को हैंड ओवर करेंगे. Select the class of which you want to download the fitness ID card. Click on view button. So these are the students in class first A. Click on this checkbox. Click on this print fitness ID cards. जैसे ही आपने प्रिंट फिटनेस आईडी कार्ड पर क्लिक किया, दिस इज द इंटरफेस ऑफ योर आईडी कार्ड. ये इस तरह के आईडी कार्ड्स आपको वहां पर दिखेंगे. फॉर हर बच्चे का आईडी कार्ड होगा. यू कैन पुट दिस फोटोग्राफ, आपको ऊपर से आप पेस्ट कर सकते हैं और यू कैन आस्क द चाइल्ड कि वो अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ इस आईडी कार्ड पर लगाए. ये दिस इज द इंटरफेस ऑफ योर आईडी कार्ड, क्यूआर आईडी कार्ड, जो कि आपको आफ्टर द टेकिंग टेस्ट स्कैन करना है, जो कि आपको टेस्ट के वक्त स्कैन करना है. These are the ID cards. Click on this print button to print fitness ID cards. Thank you. This is how our smart ID cards are also ready. हमारा स्कूल रजिस्टर्ड हो चुका है, हमारा SSR हमारा साइन अप हो चुका है, स्कूल का डेटा अपलोड हो गया है. हमने हर 4th स्टेप हमने हर बच्चे को आईडी कार्ड जनरेट करके हैंड ओवर कर दिए. फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज ऑफ टेक्निकल पार्ट इज दिस कि हमें हमारे एसेसर को और हमारे स्कूल पोर्टल को मर्ज करना है. हमने हमारे एसेसर को उस स्कूल के साथ असाइन कराना है. तो वो प्रिंसिपल अपने स्कूल अटैच करेंगे, एक्टिवेट करेंगे कि ये टीचर बिलोंग्स टू माय स्कूल एंड कैन टेक द असेसमेंट ऑफ माय स्कूल. और उस स्कूल का डेटा उस एप्लीकेशन पर, उस टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन पर एक्सेस होगा. So now to manage assessors on Principal HM page, you have to click on Manage Assessor. Here you have to enter थर्ड ऐप होम स्टूडेंट. उसके बाद जो थर्ड ऐप है मैनेज एसेसर, थर्ड टैब है मैनेज एसेसर. यू विल क्लिक ऑन द मैनेज एसेसर. यहाँ पर आपको नीचे 2 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, रजिस्टर्ड विद द स्कूल एंड न्यू एसेसर. न्यू एसेसर पर आप जाएंगे और उसके बाद यू विल टाइप द ट्रेनर आईडी, जो कि आपको साइन अप के वक्त हमने कहा था आप स्क्रीनशॉट लीजिए. वो आईडी आप यहाँ पर टाइप करेंगे और आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी. सो वो आईडी आपको अपने पास हैंडी रखनी है इस वक्त. trainer ID. Click on search button. Now this is the trainer ID. This is आपने अपनी आईडी क्लिक टाइप किया, आपने सर्च किया, आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई. आपके प्रिंसिपल आपको अटैच करें, वो आपकी डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं. यहाँ पर ये बटन है एक्टिवेट, वो इसको एक्टिवेट करेंगी एंड रजिस्टर्ड विद स्कूल.
एक्टिवेट करते ही और उसके बाद रजिस्टर्ड विद स्कूल पे क्लिक करते ही आप उस स्कूल का डेटा अपने मोबाइल खेलो इंडिया ऐप पर एक्सेस कर पाएंगे एंड यू आर रेडी टू टेक द टेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर स्कूल. The name of the trainer, mail ID of the trainer, and contact number of the trainer. After that, you have to click on activate button. Are you sure you want to activate the selected assessor with your school? Click on yes button. Now click on registered with school. So now you can see the trainer is activated. Now the trainer is activated with the school. The moment HM have clicked on the registered with the school, the teacher is attached or assigned with that particular school. अब यहाँ पर जहाँ एक्शन में आपको एक्टिव आ रहा था, यहाँ पर डीएक्टिवेट आ रहा है. डीएक्टिवेट ये इसलिए आ रहा है if you switch over the school or you change the school or maybe due to some reason you are not able to continue with the school, आपको वो स्कूल डीएक्टिवेट करेगा. यहाँ से बिफोर लिविंग दैट स्कूल आपको उस पोर्टल पर जाके अपने आप को डीएक्टिवेट करना. द प्रिंसिपल विल डीएक्टिवेट यू. तो उस डीएक्टिवेट करने के बाद आप स्कूल का डेटा अपने मोबाइल ऐप पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे. स्कूल का डेटा विल रिमेन विद स्कूल एंड स्कूल विल असाइन अनदर टीचर एंड यू विल गो टू wherever you will go to other school. वहां पर जाके आप अपने उसी ट्रेनर आईडी से आप अपने आप को उस नए स्कूल के साथ एक्टिवेट कराएंगे और फिर आप अपने नए स्कूल का डेटा अपने मोबाइल ऐप पर एक्टिवेट कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे. मींस दिस ट्रेनर आईडी इज फॉर योर कंप्लीट करियर. आप जहां पर भी जाएंगे, जहां पे भी असेसमेंट्स करेंगे, आप इसी थ्रू आईडी के करेंगे. Activated with this school, and he has also received user ID and password for Khelo India Fitness Assessment mobile application on the mail ID which was entered while doing sign up on Khelo India mobile application. This is the mail which was received. जैसे ही आपको उस स्कूल के साथ असाइन किया जाएगा, आपके पास एक मेल आएगी जो आपने अपनी एप्लीकेशन साइन अप के वक्त आपने अपनी पर्सनल मेल डाली थी. एप्लीकेशन साइन अप के वक्त वहां उस मेल पर आपको एक मेल आएगा जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड आएगा जिससे आप उस एप्लीकेशन को ऑपरेट करेंगे. फाइन. ये जो आपका पास यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है, दिस इज टू ऑपरेट योर एप्लीकेशन मोबाइल ऐप. This is the user ID and password. Using this user ID and password, he can log in the mobile application and can start fitness assessment. Thank you. Okay. हमने स्टूडेंट्स को अपलोड कर दिया और उनका QR ID कार्ड जनरेट कर दिया, अपने एसेसर को असाइन कर दिया एंड वी अज्यूम कि हमने उनके 2 टर्म में टेस्ट भी करा दिया. अगर आपने जब 2 टर्म उनके टेस्ट करा दिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, बोथ द टर्म्स आर कंप्लीटेड विद देयर टेस्ट एंड द न्यू सेशन बिगिन. आपका न्यू सेशन शुरू हो गया है. तो नाउ हाउ टू प्रमोट द स्टूडेंट्स. आपको अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है, ना कि आपको पूरा डेटा अपलोड करना है. ऐसा नहीं होगा कि क्लास 1 से जब बच्चा क्लास 2 में जा रहा है, अगेन यू हैव टू री अपलोड द डेटा. नो, देयर इज अ प्रोसेस इन दिस पोर्टल कि आपको उनको प्रमोट करना है. ट्रांसफर द चिल्ड्रन, दोज हु हैव पास आउट द स्कूल, दोज हु हैव लेफ्ट द स्कूल, उनको आप ट्रांसफर कर देंगे. +2 स्टूडेंट्स दे पास्ड आउट, तो आप उनको ट्रांसफर कर देंगे. मिड टर्म किसी ने विड्रॉ किया आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म सेशन, आप उसको ट्रांसफर करेंगे और रिमेनिंग स्टूडेंट जो आपका डेटा है उसको आप एज इट इज प्रमोट कर देंगे. क्लास 1 स्टूडेंट विल गो टू 2, 2 विल गो टू 3. तो मींस ऑटोमेटिकली सारा डेटा आपका प्रमोट हो जाएगा. आपको उसको पूरी एक्सरसाइज को दोबारा नहीं करना है आपको. अब हाउ टू प्रमोट द स्टूडेंट्स को प्रमोट कैसे करना है, किस टैब में जाके करना, दिस वी विल सी इन दिस वीडियो. To promote students, click on student login password, select school, select class, click here to promote. These are current class. Let me. These are current classes. These are. जैसे ही आप प्रमोट पर क्लिक करेंगे, आपको दिखाई देगा कि टोटल नंबर
ये शो एंट्रीज कैन बी 25, कैन बी 50 एंड मोर. आप इसको जैसे हमने आप दिखाई देगा करंट क्लास क्या है, प्रमोशन क्लास क्या है आपकी, और नीचे एक ऑरेंज कलर का बटन है जिसमें आपको प्रमोट है. आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बच्चा जो फर्स्ट ए का बच्चा था ये सेकंड ए में प्रमोट हो गया, फर्स्ट बी का बच्चा था ये सेकंड बी में प्रमोट हो गया. After promotion classes, click on this promote button. Click on I agree. आपको यहाँ अग्री करना है कि ये बच्चे हमारे प्रमोट हम कर रहे हैं. Now to delete students record, click on select school, select class, click on view button, select the student, click on. अब जो बच्चे हमें ट्रांसफर करने हैं, जो बच्चे हमें हमारा स्कूल स्विच कर रहे हैं, उनको हमें ट्रांसफर करना है. उनका डेटा फिर हमारे डेटा में एग्जिस्ट नहीं करेगा. दे विल नॉट रिफ्लेक्ट इन आवर एप्लीकेशन ऑन आवर पोर्टल ऑल्सो. उन बच्चों को हमें कैसे करना है, हमें उनको सेलेक्ट, हमने क्लास सेलेक्ट किया, हमने व्यू में गए, उसके बाद हम व्यू में जाने के बाद जब लिस्ट ओपन हुई और उस लिस्ट में चेक बॉक्स में जिस भी स्टूडेंट के नाम के आगे हम क्लिक करेंगे, इस चेक बॉक्स में जैसे मैंने सुशांत के नाम के आगे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर एक एक्शन के नीचे जाएंगे आप, यहाँ पर है एडिट. एडिट पे हमें क्लिक करना है. Edit. To transfer or to delete student, click on transfer. मैंने उस स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, एडिट में गए हम एक्शन में और हमने उसको ट्रांसफर पर क्लिक कर दिया, तो वो बच्चा हमारे पास से ट्रांसफर हो गया. Click on yes button. Thank you. This is how our on a IT part हमारा स्कूल रेडी है असेसमेंट्स के लिए. हमारा स्कूल रजिस्टर्ड हो चुका है, हमारा स्कूल के असेसर साइन अप कर चुके हैं, साइन हो चुके हैं स्कूल के साथ, हमारे स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड हो गया है, एंड वी नो द टेक्निकलिटीज, उनको प्रमोट कैसे करना है. वी आर रेडी टू टेक द असेसमेंट्स. सो नाउ आई रिक्वेस्ट सुजित सर टू टेक अप द असेसमेंट्स पार्ट. हमें असेसमेंट्स कैसे करने हैं और फिजिकल असेसमेंट्स ऑन द ग्राउंड, व्हाट आर द एक्टिविटीज वी आर डूइंग इन दिस. थैंक यू सर. You can see the assessments are divided into two parts. So I will explain you. Hello. Yes, sir. You're Can you, audible. sorry. I had muted. I did not realize. So अभी नीरज ने आपको समझाया, जो आपको समझाया वो है कि फिजिकल फिटनेस असेसमेंट करने से पहले आपको दो चीज करनी है. एक तो स्कूल को schoolfitness.kheloindia.gov.in में जाकर रजिस्टर करना है एज ए प्रिंसिपल. फिर आपको बच्चों का डेटा को अपलोड करना है. अगर पुराने बच्चे थे आप उनको प्रमोट करना है. तो ये तो हो गया जो प्रिंसिपल्स को करना है. और तीसरा दूसरी तरफ जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है या जो भी असेसर है, कुड बी प्राइमरी टीचर्स आल्सो या कोचेस भी हो सकते हैं, वो अपना ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे. ये करना है फिजिकल एजुकेशन टीचर या जो स्पोर्ट्स कोच है. फिर वो प्रिंसिपल्स के पास जाएंगे, प्रिंसिपल को कहेंगे कि आप हमें लिंक कर दीजिए स्कूल के साथ. तो वो मैनेज असेसर के थ्रू उन्होंने बता दिया, पी टीचर्स लिंक हो गए एप्लीकेशन के साथ. तब तक पी प्रिंसिपल ने रजिस्टर करके बच्चों का डेटा अपलोड किया. लिंक करते ही सारे के सारे डेटा ऑटोमेटिकली फोन में आ जाएगा बच्चों का डेटा. अभी हम देखेंगे असेसमेंट कैसे करना है. अभी हमने देखा था, तो आज जो है हम क्लास 1 to 3 दैट इज 5 to 8 इयर्स के लिए देखेंगे, और कल जो देखेंगे हम 9 to 18 इयर्स के लिए देखेंगे. तो 5 to 8 इयर्स के लिए अभी चेक करते हैं. तो 5 to 8 इयर्स के लिए देयर आर 3 टेस्ट व्हिच आर देयर, BMI, प्लेट टैपिंग और फ्लेमिंगो बैलेंस. तो पहला वाला टेस्ट देखते हैं, वो है बॉडी मास कंपोजिशन का. तो इसमें बहुत सिंपल है. हाइट एंड वेट हमें मेजर करना है. हाइट जो है सेंटीमीटर मिलीमीटर में करना है, वेट जो है किलोग्राम और ग्राम में करना है. कैसे करना है हम इस चीज को देखते हैं. आई होप या
calculate the body mass index, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. तो ये अभी टेस्ट करने के लिए बहुत सिंपल है. आपने खेलो इंडिया स्कूल वर्जन अपने ऐप डाउनलोड कर लिया. अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग पी टीचर्स हैं सब अपने अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए. तो एनीवे जब डाउनलोड हो जाएगा टीचर अपना डेटा अपलोड करेगा तो ऑटोमेटिकली इसके थ्रू आ जाएगा. आप इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इस स्कूल का 2239 है. जब आप ऐप को खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा डेटा. तो 2229 बच्चे हैं और इतना रिकॉर्ड जो है किसी और पी टीचर ने असेसमेंट किया हुआ है. ये ऐप खोलेंगे तो उसमें एक टेक टेस्ट का ऑप्शन है. उसमें बाकी ऑप्शन भी है. व्यू रिपोर्ट करके टेस्ट ऑप्शन में क्लिक करना है. From various test options, select BMI. तो इसमें जो है जितना भी फिटनेस कैटेगरी का हम बात कर रहे हैं ये सारी चीजें इधर है. तो आपको BMI में क्लिक करना है क्योंकि हम BMI का टेस्ट कर रहे हैं. App is now ready to calculate the body mass index. Body mass index or BMI is used to measure the body composition. तो ये जो है बॉडी मास इंडेक्स जो है बॉडी कंपोजिशन को मेजर करता है. इसका मतलब है कि बॉडी का जो वेट आपकी जो अगर हाइट है हाइट को अगर स्क्वायर की तरह सोचते हैं हाइट बाय वेट हाइट मल्टीप्लाइड बाय हाइट आपका टोटल वेट को डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर करेंगे तो उसमें BMI मेजर होता है. तो बॉडी कंपोजिशन को मेजर करता है. Which refers primarily to the distribution of muscles and fat in the body. तो बेसिकली आपका मसल और फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे बॉडी में उसको मेजर करता है. Body size such as height, length and girths are also grouped under this component. BMI is calculated by taking a person's weight and तो ये BMI जो है पर्सन का वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर उसको मेजर करता है. जो भी आपका हाइट है सो किसी का हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है तो 1.6 मीटर हो गया. 1.6 मीटर इंटू 1.6 मीटर हो गया आपका ये. और जो वेट है वो किलोग्राम है. जो भी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स उसका स्क्वायर है. वो है BMI का फॉर्मूला. dividing by their height squared. To measure the height correctly, a steriometer is required. हाइट को मेजर करने के लिए आपको एक स्टेडियोमीटर चाहिए. जो डिवाइस देख रहे हैं इसको स्टेडियोमीटर बोलते हैं. जिसमें एक फ्लोर में ये है और एक हाइट का स्केल. If steriometer is not there, it could be done against a wall as well with measuring tape pasted on it. तो इसमें ये बोला गया कि अगर आपके पास स्टेडियोमीटर नहीं है तो आप वॉल में एक टेप भी लगा सकते हैं उसमें जिसका 0th पोजीशन जमीन के साथ होगा. आप वो भी कर सकते हैं. Should be done on a hard flat surface. The participant should remove shoes, bulky. तो इसमें जो है ये जो है आप देख सकते हैं ये हार्ड सरफेस के ऊपर होना है. हार्ड सरफेस का मतलब है कि इसमें कोई कारपेट के ऊपर नहीं रहना चाहिए. इट शुड बी ऑन हार्ड सरफेस. इवन और हार्ड सरफेस होना चाहिए. और आप देख सकते हैं उसका जो पार्टिसिपेंट है उसका शूज रिमूव होना चाहिए. और कोई ऑर्नामेंट पहना है या हेवी क्लोथिंग है वो भी Clothing, hair ornaments and unbraid hair that could interfere. तो ये लिखा हुआ है उसके शूज नहीं होना चाहिए. हेवी क्लोथिंग नहीं होना चाहिए और कोई ऑर्नामेंट है वो भी नहीं होना चाहिए. With the measurement. Participants should stand with feet flat together and back against the wall. Legs तो पार्टिसिपेंट्स अपना लेग को नीचे रखें फ्लैट सरफेस में रखें और should be straight, arms at side and shoulders level. The participant should look straight ahead and the line of sight should be parallel. तो ये जो है उसका देख सकते हैं बॉडी पूरा स्ट्रेट है. हाथ उसका साइड में है और पार्टिसिपेंट पूरा स्ट्रेट देख रहा है पार्टिसिपेंट इसमें. और जो हाइट है ये सेंटीमीटर में मेजर होना है. आप देख सकते हैं स्केल में 151 सेंटीमीटर का है. तो ये सेंटीमीटर में मेजर करते हैं. To the floor. The height should be recorded in centimeter. The reading of the height should be typed in at the designated place. ये जो जब आपने ऐप खोला ये BMI में खुल गया. BMI में आपको हाइट लिखना है ये सेंटीमीटर में लिखना है एंड यू कैन राइट अप टू द नियरेस्ट पॉइंट 151 पॉइंट समथिंग वो भी आप लिख सकते हैं. Is on the screen. To measure the weight accurately, a digital scale should be used. आपको जो वेट मेजर करना है आपको एक डिजिटल स्केल यूज करना है. जैसे इसमें आप देख सकते हैं 44.7 किलोग्राम है. डिजिटल स्केल में आपको एक्यूरेसी मिलेगा. दूसरे में हो सकता है इनएक्यूरेसी हो. The scale should be placed on firm flooring rather than a carpeted floor. तो ये जो है ये आपको फर्म फ्लोरिंग में रखना है. फ्लैट सरफेस में रखना है. नीचे कारपेटेड सरफेस में नहीं रखना है. हार्ड सरफेस में. The participant should remove shoes and heavy clothing.
तो पार्टिसिपेंट को जो है अपना शूज रिमूव करना है और कोई भी हेवी क्लोथिंग है उसको रिमूव करना है. The participant should stand with both feet in the center of the scale. पार्टिसिपेंट को स्ट्रेट खड़ा होना है, सेंटर ऑफ द ईयर, स्ट्रेट आंख को आगे रख के. The weight should be recorded in kilogram and gram to the nearest decimal. तो ये जो है ये किलोग्राम एंड ग्राम में मेजर करना है, नियरेस्ट डेसिमल तक 44.8 किलोज है. The reading of the weight should be typed in at the designated place on the screen. आप देख सकते हैं जो भी उसका वेट आया था 44.8 किलो आया था, 44 पॉइंट. सिमिलरली हाइट का भी जो भी आएगा सेंटीमीटर और मिलीमीटर में. Once both the readings are entered in the app, scan the ID card of the participant by tapping. जब आपका ये हो जाएगा तो आपको क्या करना है, जो हमने देखा था, नीरज जी ने बताया था आपको कि आईडी कार्ड प्रिंट करना है. तो आईडी कार्ड को यहाँ पे एक स्कैन बटन था. इससे पहले जो है आप देखेंगे ऊपर एक स्कैन बटन है. स्कैन बटन में क्लिक करते ही वो The screen. स्कैन. Once both the readings are entered in the app, scan the ID card of the participant by tapping on the scan option. Was the age and gender of the तो उसमें करते ही ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं उसका नाम, कौन सा क्लास है, क्या उसका आईडी है, क्या उसका एज और जेंडर, ये अपने आप ही आ गया. आपको ये सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ा. लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर स्कैन के टाइम पे अगर बाई चांस अगर नहीं है आपके पास, तो तभी भी आपके पास ऑप्शंस है टू सर्च फॉर द क्लास आल्सो. gender of the participant is updated, save the record by tapping on the save option. This complete. आपको सेव का बटन फिर क्लिक करना है. बड़ा सिंपल है. हमने क्या किया, हमने पहले बच्चे को हाइट को मेजर किया, फिर वेट को मेजर किया. जब ये दोनों चीज हो गया, हमने स्कैन बटन में क्लिक किया और बच्चे का आईडी कार्ड स्कैन हो गया और सेव बटन क्लिक किया तो उसका डेटा हो गया. It's the process to calculate the body mass index or BMI. BMI का टेस्ट. फिर हम जाते हैं प्लेट टैपिंग के लिए. प्लेट टैपिंग जो है इसमें बच्चे का कोऑर्डिनेशन टेस्ट करते हैं, उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन को टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि बच्चे को अभी मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. To conduct the plate tapping test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. सेम प्रोसेस है जैसे हमने बीएमआई किया था. हमने ऐप को खोलेंगे, आप देख सकते हैं कितने बच्चे इंपोर्ट हो चुके हैं और टेक टेस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है. Once the app is on, select the take test option. जब हम टेक टेस्ट में आएंगे फिर उसको नेक्स्ट स्क्रीन है कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन का टेस्ट करें तो कोऑर्डिनेशन में क्लिक करेंगे. From various test options, select coordination and then tap on the plate tapping option. तो जो हम कोऑर्डिनेशन में करेंगे तो उसका प्लेट टैपिंग ऑप्शन आएगा, हम उस पर क्लिक कर सकते हैं. किसी को कंफ्यूजन है तो ये राइट हैंड साइड में एक वीडियो है कैसे करना है, तो हर बार वीडियो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. हर टेस्ट के साथ इंफॉर्मेशन का एक आइकॉन है और एक टेस्ट लेने का वीडियो. The app is now ready for the plate tapping test. The plate tapping test measures upper body reaction time and hand-eye quickness and coordination. It also तो ये जो है ये टेस्ट जो है ये जो स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द लैम्प, जो लिम्ब मतलब ये जो हाथ है, इसके हैंड और आई का जो कोऑर्डिनेशन है उसको टेस्ट करता है. ये स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस लिम्ब मूवमेंट उसको टेस्ट करता है. और आप देख सकते हैं इसमें तीन चीजें हैं. एक ब्लू कलर का एक शीट है और दो येलो डिस्क है. कितना क्या है अभी हम देखते हैं. assesses the speed and the coordination of limb movement. One table, two yellow discs of 20 centimeter. तो आप देख सकते हैं ये एक टेबल है जिसके ऊपर दो येलो डिस्क है, 60 सेंटीमीटर अपार्ट है. ये दोनों जो येलो डिस्क है 60 सेंटीमीटर है और ये जो बीच में एक पेपर है ये 30 सेंटर में है. फ्रॉम सेंटर ऑफ येलो एंड सेंटर ऑफ दिस थिंग 60 सेंटीमीटर का है और हाइट एक टेबल के ऊपर नॉर्मल, कोई खर्चा ही नहीं है तो पेपर से कर सकते हैं. Diameter and one rectangular sheet of 30 by 20 centimeter size. तो ये जो रेक्टेंगुलर शीट है 30 by 20 सेंटीमीटर है. 30 by 20 आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये A4 साइज का पेपर ही है, नॉर्मल A4 साइज का पेपर है. और जो येलो डिस्क है 20 सेंटीमीटर के है. Are needed to perform this test. The table height should be adjusted so that the subject is standing comfortably in front of the discs. तो इसमें ये बताया गया है कि जो टेबल का हाइट है कंफर्टेबल होना चाहिए पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेट करने के. जो क्लास 1 2 3 के बच्चे हैं उनका जो डेस्क होता है उन्हीं के हाइट के हिसाब से होता है. अगर आपको पता करना है कितना हाइट होना चाहिए, जो जिस डेस्क में नॉर्मली वो बैठते हैं
वो नॉर्मली उनके लिए कंफर्टेबल हाइट होता है। The two yellow discs are placed with their centers 60 centimeter apart. So you can see कि ये जो दोनों येलो डिस्क है वो 60 सेंटीमीटर अपार्ट है, सेंटर से 30 और सेंटर से 30, क्योंकि ये 20 का है तो ये आपको दिख सकता है। On the table, the rectangle is placed equidistant from both the discs. The participant is encouraged to stand in a balanced posture. तो पार्टिसिपेंट जो है कंफर्टेबल बैलेंस पोस्चर में खड़ा हो सकता है। ये लड़का थोड़ा लंबा है, अदरवाइज नॉर्मली क्लास 1 to 3 के लिए वो ये हाइट बिल्कुल परफेक्ट है। The non-preferred hand is placed on the rectangle. इन्होंने बोला कि नॉन प्रेफर्ड हैंड जो है रेक्टेंगल के ऊपर आएगा। नॉन प्रेफर्ड हैंड है कि जिस हाथ को हम प्रेफर नहीं करते हैं, जो प्रेफर करते हैं हाथ को उसको यूज करना है हमें टेस्ट के लिए। जो दूसरा हाथ है वो नॉन प्रेफर्ड है, जैसे इसका ये राइट हैंडेड है, मे बी राइट हैंडेड है तो मैं लेफ्ट हैंड को रखूंगा ऊपर और दूसरा हाथ को यूज करूंगा प्रेफर्ड हैंड को। The subject moves the preferred hand back and forth between the discs over the. See, जो प्रेफर्ड हैंड है, जो जिस हाथ से मैं कंफर्टेबल है उसमें लेफ्ट राइट को ये करना है। तो अभी हम देखते हैं कैसे। Hand in the middle as quickly as possible. Once the participant starts this test, the start timer. जब भी पार्टिसिपेंट रेडी हो जाते हैं तो आपको स्टार्ट टाइमर को प्रेस करना है और इसके अंदर कितना जल्दी वो 25 साइकिल का फिनिश करता है उसको सेकंड और मिली सेकंड में एंटर करना है। Option should be tapped on the screen. This action is repeated for 25 full cycles. तो आप देख सकते हैं ये जो है 25 साइकिल है। मान लीजिए कि मैंने ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, यहाँ गया और फिर वापस आया, तो ये एक साइकिल है। ये पूरा जो एक साइकिल है, मतलब आइदर यू कैन थिंक कि 50 टैप्स है, ये 25 साइकिल है। जो पी टीचर है वो जब एक साइकिल होगा तो वो कैलकुलेट करता है अपने माइंड में 1 2 3 4 5 6 करके। जब 25 साइकिल हो जाएगा तो वो वाला टाइम हमें रिकॉर्ड करना है। The total time taken to complete 25 full cycles is recorded. 25 बार क्लिक 25 साइकिल को कंप्लीट करने का पूरा टाइम को लेगा। As the participant completes 25 full cycles of tapping, stop timer option should. जब 25 साइकिल हो गया, होते ही उनका टाइमर को क्लिक करना है। आप देख सकते हैं 24 सेकेंड और 224 मिली सेकेंड टाइम लगा इसको। ये अपने आप ही आ गया, आपको एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ा। Be tapped on the screen. The clock on the screen shows the time taken by the participant to complete 25 टाइम दिखा रहे हैं। full cycles of plate tapping. To record the data, first scan the ID card of the student and ये then सेम हो गया। फिर हमने आईडी कार्ड को स्कैन बटन में क्लिक किया। आईडी कार्ड को स्कैन करते ही बच्चे का नाम, उसका क्लास और ये चीज आ गया ऑटोमेटिकली। tap on the save option. This completes the plate tapping test. ये बच्चे का जो है ये प्लेट टैपिंग टेस्ट हो गया, कंप्लीट हो गया उसका। तो इसमें आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल है। रिइटरेट करूं, 25 साइकिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसमें करना है। आपको टाइमर को ऑन करना है और टाइमर को बंद करना है, दैट्स ऑल। और 2 डिस्क है 20 सेंटीमीटर का और जो टोटल डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो 60 सेंटीमीटर का है, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है। 25 full cycle is 50 taps. फिर हम नेक्स्ट में जाते हैं, फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट। फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट है कि एक बच्चे को 60 सेकंड खड़ा होना है तो कितने बार वो गिर जाता है। बच्चा हो सकता है कि 15 सेकंड के बाद खड़े होते ही गिर जाएगा तो 1 बार हो गया, और 15 सेकंड के बाद गिरा तो 2 बार हो गया, फिर 15 सेकंड का आ रहा तो 3 हो गया, और चौथी बार में वो कंप्लीट कर लिया। तो 60 सेकंड खड़े होने के लिए वो 3 बार गिरा है। हो सकता है कोई बच्चा है तो 60 सेकंड बिल्कुल खड़े हो जाता है, वो एक बार भी नहीं गिरता तो उसका स्कोर 0 है। 0 इज द बेस्ट स्कोर इन 60 सेकंड खड़े होने के लिए। ये थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम स्टॉक टेस्ट। स्टॉक टेस्ट में क्या होता है कि आपको पहली बार अगर आपने 15 सेकंड में गिर गया तो 15 सेकंड है आपका स्कोर। स्टॉक टेस्ट में स्कोर जो है सेकंड्स में आता है, और फ्लैमिंगो बैलेंस के जो स्कोर आता है वो आता है काउंट पे। तो हम फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट के बारे में बात करें, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो हम देखते हैं अगर ये बच्चा कोई पहला 30 सेकंड में 15 बार गिर रहा है, 30 सेकंड भी नहीं खड़ा हो पा रहा है, 15 बार गिर रहा है, तो उसका मतलब उसका बिल्कुल बैलेंस नहीं है, तो उसका टर्मिनेट हो जाता है। उसको देखते हैं। To conduct the Flamingo balance test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app तो सेम है,
इसमें भी आपको खेलो इंडिया का ऐप को खोलना है और ऑप्शन आएगा टेक टेस्ट का, उसमें क्लिक कर लीजिए. App is on. Select the take test option. From various test options, select balance. तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमने जो डिफरेंट टेस्ट ऑप्शंस है, हमने बैलेंस जो है, बैलेंस को टेस्ट करना, तो बैलेंस में हमने क्लिक किया. Select balance and then फ्लेमिंगो बैलेंस आएगा, उसके अंदर आप उसको क्लिक कीजिए. tap on the Flamingo balance test option. The app is now ready for the Flamingo balance test. The Flamingo balance test measures the ability to balance successfully on a single leg. Test assesses the strength of the leg. तो इसमें आप देखेंगे तो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट जो है वो लेग का स्ट्रेंथ, पेल्विक का ट्रंक मसल्स का स्ट्रेंथ को करता है, और जो स्टैटिक बैलेंस है उसको चेक करता है वो. अब जो भी पार्टिसिपेंट जो है, जो भी उसका प्रिफर्ड लेग है, उसमें खड़े हो सकता है. आपको दोनों लेग में करने की जरूरत नहीं है, सिंगल लेग में करना है. और ये यू कैन सी, ये जो पोस्चर है, ये फ्लेमिंगो का पोस्चर है, परफेक्ट पोस्चर है. हाथ आगे, बॉडी स्ट्रेट है, लेग ऐसे फोल्डेड है, और ये है. तो हम इसको चेक करते हैं. तो स्टैटिक बैलेंस को चेक करते हैं, और लेग, पेल्विक का ट्रंक मसल्स को, Pelvic and trunk muscles as well as static balance. While balancing on the preferred leg, the free leg is fixed at the knee and the यू कैन सी कि जो बैलेंस करते हैं उसका जो एक लेग तो सीधा है और दूसरा लेग यहाँ पे फोल्डेड है. वो जो उसका बटक्स है उसके साथ वो टच होना है, उसके जो लेग. The foot of this leg held close to the buttocks, standing just like a flamingo. The test should be done on a non. ये जो टेस्ट है, ये नॉन स्लिपरी सरफेस में करना है, मतलब कि जिसमें स्लिपरी ना हो सरफेस, क्योंकि ये ब्रिक के ऊपर खड़े हो रहे हो तो इम्बैलेंस हो सकता है, और इवन सरफेस होना चाहिए. सो या तो आप ब्रिक ले सकते हैं, जैसे हमारे पास उस दिन जब शूट किया था, उस दिन हमारे पास बीम था नहीं, तो हमने ब्रिक यूज किया है. ब्रिक के ऊपर जैसे रियल, तो आप बीम भी यूज कर सकते हैं. बीम भी करना है तो ब्रिक का हाइट का होना चाहिए, उससे ज्यादा ऊंचा ना हो और ज्यादा ये ना हो. सो यू कैन एक्चुअली डू इट लाइक दैट. Slippery even surface by standing on a beam or a brick. The athlete keeps balance by holding the instructor's hand. तो ये जो है, अगर एथलीट को कोई प्रॉब्लम परेशानी होती है, इनिशियली क्या होता है, पहले करते हैं तो फर्स्ट में जो इंस्ट्रक्टर है उसका हाथ को पकड़ सकते हैं, फिर हाथ जब वो रेडी हो जाए तो हाथ को वो छोड़ दें. Required. The timer is started as the instructor lets go. टाइमर जब भी वो रेडी हो जाए, टाइमर कहेगा स्टार्ट, और वो टाइमर को आप स्टार्ट कर लीजिए. To start the timer on the app, start timer should be tapped. आप ये देख सकते हैं, जब भी उसका ये हो रहा है तो टाइमर को हमने स्टार्ट किया. जब भी रेडी हुआ, टाइमर को स्टार्ट करते ही वो टाइमर उसके ऊपर अपने आप चालू हो गया. The timer is stopped each time. तो टाइमर जो है, टाइमर तभी पॉज करते हैं जब भी वो बैलेंस खो जाएगा बच्चे का. अभी देखेंगे बैलेंस खो जाएगा बच्चे का, तो टाइमर को स्टॉप करेंगे, पॉज करेंगे. स्टॉप तो नहीं करते, पॉज करते हैं. The athlete loses balance either by falling off the beam or letting go the foot behind being hit. आप देख सकते हैं वो जो पार्टिसिपेंट है उसका बैलेंस खो गया, या तो लेग गिर गया या बैलेंस खो गया. तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने पॉज टाइमर में क्लिक किया, तो ये पॉज हो गया. अभी फिर से इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा. 15 सेकंड के बाद पॉज हो गया तो उसका काउंट जो है 1 हो गया. Held. To do that, pause timer should be tapped on the app each time the participant loses balance. Start the timer again when the तो फिर से जब एथलीट फिर से पोजीशन में आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको टाइमर फिर से स्टार्ट करना है. participant is in the position. If there are more than 15 falls in first 30 seconds, the test is terminated. आप ये देख सकते हैं, ये जो है, ये जो एथलीट है, एक एग्जांपल है, वो 30 सेकंड भी खड़ा होने के लिए वो 15 बार गिर चुका है. अगर 30 मतलब एक एथलीट अगर 15 बार गिर रहा है विद इन फॉर स्टैंडिंग इवन 30 सेकंड्स, इसका मतलब उस एथलीट का बिल्कुल ही कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए उसको हम कर देते हैं डिस्क्वालीफाई. तो 15 बार जब हो जाएगा 30 सेकंड के अंदर, तो एथलीट हो जाएगा डिस्क्वालीफाई. The number of falls or loss of balance in 60 seconds of balancing is counted and recorded. The timer automatically stops at the 60 आप seconds. देख सकते हैं ये जो एथलीट है उसने वो 3 बार गिरी,
एथलीट हैं, और 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट होते ही, दैट इज 60 सेकंड होते ही ये टाइमर अपने आप रुक जाएगा और जो भी काउंट है वो उसमें स्टोर हो जाएगा. Mark. The ID card of the participant is scanned तो जब हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, आईडी कार्ड का स्कैन कर by tapping on the scan option. Once the participant details are updated, the data is saved by tapping on the save option. This completes the Flamingo balance test. फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट जो है, फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट का हमने ये कर दिया. तो आज हमने जो है, हम 3 टेस्ट का हमने सारी चीज देख लिया, कि स्कूल्स को कैसे रजिस्टर करना है, असेसर को कैसे रजिस्टर करना है, फिर उसके बाद स्कूल कैसे डेटा को अपलोड करेंगे. डेटा अपलोड करते ही और असेसर जितने भी हैं उनको स्कूल जोड़ देगा, जोड़ते ही और डेटा अपलोड करते ही उनके मोबाइल में डेटा आ जाएगा और असेसर कैन डू द टेस्ट. ये जो है, आज हमने 5 to 8 years मतलब क्लास 1 to 3 का हमने कवर कर लिया. कल जो है, कल क्लास 4 to 12 का कवर करेंगे. फिर उसके साथ हम बाकी एक और चीज भी करेंगे उसमें, कि रिपोर्ट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे और पेरेंट्स कैसे कल देख सकते हैं. ये हम कल इस चीज को कवर करेंगे. तो ये गंगवा जी आज का ये है. सो आई थिंक सो टुमारो विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट सेट व्हिच इज फॉर क्लास 4 to 12 एंड रिपोर्ट कार्ड. तो वो करेंगे, रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और पेरेंट ऐप में कैसे ये अवेलेबल होगा और पेरेंट्स कैसे अपने घर में असेसमेंट कर सकते हैं बच्चों का, वो सब चीजें हम कल देखेंगे. Hello. Yes, sir. Yeah. Thank you so much for wonderful session, sir. So before we going to the question answer session, I would like to just request our principal, sir, so to please have few words. Sir, you are covering the topic Hello India Fitness Assessment App, registration process, and how to assess the performance of the children. So, sir, please. सर तो हमारे गुरु एक्चुअली, सर ने 16-17 लाख असेसमेंट किए हुए हैं. सर, ऑल योर ब्लेसिंग्स. Thank you, Dr. Narendra. I think this is a very expert panel. You know, I value this panel, even one of the best person to give the right inputs, because though we study many things practically, especially Ms. Neeraj Singh, HODP, JP Public School, Noida, Ms. Shivani, PRP SP School, Rajasthan, और Mr. हिमांशु जायसवाल, ये लोग जो है सबसे एट द कटिंग एज लेवल में जो है वो लोग. तो आपको जानकारी जो है फील्ड का जानकारी जितना आपका है, बाकी जितना सेशन में जैसे लेक्चर का उसका उतना नहीं, उससे भी ज्यादा. So you can deliver a lot, and whatever you speak, it's something which will definitely benefit, because the success of this team will depend upon those who deliver, those who inform. So who is delivering? It is the community coach or the physical education. And since you are doing it at the school, you know the practical difficulties, the challenges, and also you can feel the children, how do they respond to it, and how best we can make any modifications so that if at all there is some flow or anything to be which requires modification to be. So I value a lot on these sessions, and especially I could see the glimpse of how Sujit and Madam was speaking on exemplary, very good. I think it will carry a lot of message to the entire, and I think you would have received a lot of questions also. So I'm sure that this is something through which we can make this our schemes, Hello India fitness assessment. See, nobody heard me when I have the fitness scheme launched in '97. Kerala, when I was additional director of sports in state government, I tried to launch it known as Kerala State Fitness Program. At that time, then it was very difficult to convince people in the year '97, and I could implement in 2 districts in Kerala, that is Thrissur and Palgar. So there also we could partially do. At that time also we could reach out to around not less than around 2.5 lakhs. But that was also a big ice breaking or eye opener.
the revelations which have come. Then later in the year 2006, again we did it. No, we changed the program to total fitness program, made a lot of modifications with our experience in '97. And 2006, that time I was Secretary Kerala State Sports Council and Director Sports Council. So government took a decision to implement this, and 2006, the then President of India came and launched this. And we did it, 19 lakhs children with participated. And there too, the results were, something which was quite alarming about the fitness level of the children. And it was debated even and discussed in the State Assembly. So now again, they are trying to take it forward with some more revisions, and they want to link it with the Hello India Fitness Vertical. That discussions are now going. Anyway, this is something very remarkable, the sessions of viewing practical of Hello India Fitness. I think this is only the way we can get our generation healthy and fit. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your valuable inputs. So now here we'll take some question. So Sujit sir, जो पहला question है, that is some participants attending from Bahrain. So Bahrain. Bahrain. So the question is, like foreign country CBSE schools are also part of Hello India program. मैं उसका क्वेश्चन मुझे पता है, मैं उसका आंसर दे देता हूँ एक्चुअली. हाँ, प्लीज. एक्चुअली क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन खेलो इंडिया का जो एप्लीकेशन है उसको इंडिया में रेस्ट्रिक्ट कर रखा है. टेक्निकली देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इंडिया में रेस्ट्रिक्ट कर रखा है. बट वी हैव टेकन अ नोट ऑफ दैट. ऑल द सीबीएसई स्कूल्स व्हिच आर आउटसाइड ऑफ इंडिया, we will I will be after 29th, once it is over, all the sessions are over, we'll talk to the ministry so that it can be opened up to all the CBSE schools which are outside of India. Okay. But this is a program for finding talent within India. तो वो प्रोग्राम का ही है, लेकिन क्योंकि सीबीएसई स्कूल्स आउटसाइड इंडिया है तो हम इसको करेंगे, इसको जल्दी करेंगे. So basically their question is कि एप्लीकेशन बाहर नहीं चलता है. तो ये टेक्निकल इशू नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है. वो इंडिया के लिए बना हुआ है. But we will do it for CBSE schools outside India. Hello. Yes, sir. Yeah. Thank you, sir, Suji sir. Now I'll take the next question. That is, what to do? Like that is not actually question is not related to that what session we had, but somehow the participant what to do when good talent identified and no cooperation from parents due to illiteracy or like they. नहीं, अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैंने जो सबसे पहले एग्जांपल दिया था, दूती चंद का एग्जांपल दिया था, वो बिलो पॉवर्टी लाइन से. आप सोचिए, बिलो पॉवर्टी लाइन से मतलब खाने पीने के लिए भी नहीं है. द फैक्ट इज कि अगर जैसे हम हर स्कूल में असेसमेंट करेंगे, आप एक भी बच्चे को मत छोड़िए, जब वो असेसमेंट करेंगे, अगर कोई बच्चा अच्छा है तो हम क्या है कि अगर साई की तरफ से जब साई उनको आइडेंटिफाई करेगा वो अच्छे बच्चे हैं, तो साई की स्कीम से आप सोचिए कि उसे साई की स्कीम में उनको स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन मिलेगा. वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्पोर्ट्स के लिए उनको स्कीम्स में इंसेंटिव मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे. तो उनकी सारी चीज साई करेगा. अगर टैलेंट अगर आइडेंटिफाइड है और यंग एज में, साई विल टेक केयर ऑफ दैट. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस थिंग. तो आई एम श्योर पेरेंट्स को अगर देखेंगे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी किसी बच्चे को ये कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आई एम श्योर ऑल द पेरेंट्स विल बी मोटिवेटेड. बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बच्चे इंजीनियर भी बन सकते हैं. सी इट इज बेटर टू बी अ गुड स्पोर्ट्समैन देन बी अ बैड इंजीनियर, राइट? सो यू कैन ऑलवेज सो करियर तो किसी में हो सकता है जिसमें भी टैलेंट है, मतलब मैथ्स में, साइंस में, फिटनेस में है, मतलब किसी स्पोर्ट्स में भी, जिसमें भी टैलेंट है, पेरेंट्स अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो बच्चा हमेशा अच्छा ही करेगा. आई एम श्योर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रहा है तो व्हाई नॉट. आई एम श्योर पेरेंट्स भी करेंगे उसको. Yes. So sir, thank you for explaining. And now as we are running sort of time, and we will have another session as well, and there are many questions in the chat question answer section, and I was just going through one question. So sir, उसमें क्वेश्चन इस तरह से है कि जैसे हम स्कूल फिटनेस असेसमेंट के लिए हम लोग स्टार्ट किए हैं ये प्रोग्राम, तो इस तरह से कुछ अगर मतलब कुछ कॉलेज लेवल या कुछ जो थोड़ा
उस तरह का भी कुछ प्लानिंग है या हम करेंगे, क्योंकि इफ वी इंक्लूड मोर पॉपुलेशन तो ज्यादा। हाँ सर ये एक्चुअली मंडे का जो सेशन है, मंडे का सेशन हम कह रहे हैं उसको कि इट इज अ फिटनेस असेसमेंट फॉर पेरेंट्स एंड स्कूल टीचर्स, ठीक है। Okay. लेकिन जो बैटरी ऑफ टेस्ट है हम मंडे को बात करेंगे और 18 to 65 इयर्स का बात करेंगे। आप अपने कॉलेज में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो 18 to 65 का जो ग्रुप है, हम ये मंडे को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम स्कूल के सिस्टम के साथ वही बात करें तो हम आज और कल ये बात करेंगे। मंडे के दिन जो है हम ओल्डर एज ग्रुप की बात करेंगे, 18 से 65 साल। और फिट इंडिया उसको रिलीज भी करें बहुत जल्दी, आप देखेंगे न्यूज मीडिया टीवी सब जगह आप देखेंगे अगले कुछ 2-3 हफ्ते में। वो हम मंडे को हम करेंगे उसके। ओके, थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट रिलेटेड टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एक्चुअली। वो तो कैसे टेस्टिंग करना है, उनका प्रोसीजर क्या है, एंड सो एनीथिंग मैम, नीरज मैम फ्रॉम योर साइड, as we are going to wind up the session, please. No, sir. I know that shortage of time, and we have sir addressed everything very well, and Kishore sir addressed that legacy is forwarded now. So we'll try this program already rich number, more than 22 lakh is reached up. So it's now let's talk about crores very soon. Cross our fingers. We are waiting for that moment, and I know these 800 are going to implement it very soon. Yes, really. Thank you so much. Thank Yes. you very much, sir. So if we have such confidence, like and our mentors like you, Sujit sir, and all team, so definitely we'll achieve the target. Definitely, and so we want to touch 3.5 crores this year, so we will do sure we will do it that, and we are getting all the positive supports from each and everyone. So definitely we'll achieve the target. So here Kishore sir एक part को handle कर रहे हैं, which is about training all the PTs and community coaches on structured program. दूसरी तरफ बाकी सारे लोग handle करेंगे उनकी assessment कैसे होगा. So I'm sure it's a two-pronged strategy. किशोर सर मैं सबको बोल रहा था, जो upgradation of PE teacher and community coaches है उसके दो part है. One is about structuring the PE program community coaches, which Sai LNCP is handling, in making everyone more skilled. दूसरा पार्ट है असेसमेंट है, जो खेलो इंडिया का असेसमेंट. सो विद बोथ द थिंग्स टुगेदर आई एम श्योर इंडिया विल अचीव definitely. I think once you make the people to understand its outcome, I am sure that everyone will support what we are into, into this Khelo India fitness assessment. We are targeting on 10% fitness. सर आपको मैं एक छोटा सा नंबर बताता हूँ. बिफोर वी स्टार्टेड ऑन साई एलएनसीपी का जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 26 दिन पहले, we were at 17,000 schools who had registered, and today within a month's time we have 22,000 schools which have registered. So it's a 5,000 increase in terms of number of people who have registered for this thing. Excellent. So which I think is a positive outcome. So almost 1 lakh student data has got uploaded in the last even in COVID-19. I just want to that is remarkable. That is one thing, Sujit sir, I just wanted to tell you that we must try to when I implemented what we need to make the children to understand. It is not merely a scheme. It is not merely a government-run program. This is something which is having immense benefit of them, because each student, each boy comes to know, they know about where they stand in their academics. Maybe the present academic system rates them, which category rating it. By doing the fitness assessment, they can come themselves realize which fitness level, what is their fitness standard as of now. Not only they can also realize, their parents and society can realize. This will be something of immense help to him and his family to know what is his strong points, what is his weak points. Like in the case of fitness card, when you assess the various variables of fitness, you can find out what is the things which he lacks, what are the things which he is strong. If you can able to convince them about the benefits of this because if we say the teachers, and they may not be at times convinced often. But I also propose that we must launch a campaign, and the campaign should be something which is targeting on 10% physical fitness, like 10% literacy. Once the literacy campaign was run by the country, 10% literacy, that you call it now physical literacy. What is physical literacy? It is a benchmarking which is required. Somebody is literate. If it is literacy, whether you are literate or not, is known by whether you are able to read and write.
So let us have a benchmarking what constitutes a physical literacy, and request every child to be a physically literate. So this will be something which will be of high immense benefit to them. Absolutely, sir. Absolutely. Very well. Yeah. Thank you so much, sir. Sujit sir, we'll wind up here, and Yes, sir. because as you have to take one more, you people have to take one more session. I have to take two more. Yeah. So So it'll end at 7:30 today. yeah, it's going to be very hectic day for you people. Yeah. And yes, so thank you so much on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and Khelo India, and the especially like Lakshmi National College of Physical Education, Sai Trivandrum, and on behalf of our principal sir, Dr. G. Kishore sir, and the entire team involved in conducting this program. Thank you so much, Mr. Sujit Panigari sir, for being with us and sharing your knowledge and information. Thank you so much, Neeraj ma'am, and definitely we are looking to see you more energetic in the next session. I'm inspired by Usha ma'am. I'm inspired by her. Yes. Energetic. Yes. And thank you so much to our principal sir as well. He's very enthusiastic and very keen Absolutely. to and to attend all the session and input his vast experience and knowledge. Thank you so much, sir, and thank you all the lovely participants for being with us, and see you tomorrow in the same session, and we'll have another topic to be discussed. Thank you each and everyone. See you. Thank you. sir. See you tomorrow. See you all.